Thank you so much for watching this beautiful video, your evening, my morning. Oh, let me take off from the screen so I can talk to you. Thank you so much. What did you see in the video? Who wants to share within short time, right? Jaldi jaldi kaun batana chahta hai? What did you see here? Like anything you learned from the video? Yeah, Rubina, come on. Ma'am, change management is for environment. Second, teamwork. And third is positive thinking. Wonderful. You can write in the chat box as well. Yes. Zareen, yeah, come on. Switch on your mic. Okay, ma'am. Change your size according to the situation. Wonderful, wonderful, wonderful. Mohammed Raza, great. Okay. This video basically demonstrated the advantage of being supportive and compassionate at the same time. Wonderful, wonderful. Zarina, you were completing your sentence, yes? Yes. And second is always give hand and always take hand. If someone offers you. Yeah, offer you and अगर नहीं offer करता तो खींच के पकड़ लो यार. ये भी करना पड़ता है. And third thing is if you do anything or if you do any you can do any action, so you have to face reaction. But first you have to act action. Oh, wonderful, wonderful, great. Welcome. Okay, Lala, मुझे पता आपने hand raise किया था. Yeah, okay, आपने लिख लिया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे छोटी बहुत सारी चीजें सीखने को थी. फर्स्ट थिंग इज वहां जहाँ पर सर्कल और ट्रायंगल वाला था, उन्होंने उस वक्त से हमें ये पता चलता है कि वक्त के साथ खुद को तब्दील कर देना चाहिए. सेकेंड थिंग इज दैट कि एक दूसरे के साथ के बगैर हम कुछ नहीं है. लाइक के जो भी है ना, अगर हम टीम वर्क करेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है. थर्ड थिंग इज के हर चीज की कोई भी चीज अगर जाती में हो रही है तो उसका वो भी जो है वो ज़िया है. तो हर चीज जो है वो एक एतदाल में रहनी चाहिए. ग्रेट, थैंक यू सो मच सना हनीफ. स्ट्रीमलाइन करना चाहिए. लैला, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं सालेहा और सनम के पास जाऊंगी. क्विकली. Yes, ma'am. And the same thing I felt while watching the movie, that there was constant effort, like the circle was stopping at the time, but the triangles were there who keep on moving, kept on moving. And secondly, adaptability I could find there, and support systems for other. The support system that we create for others, we can also get benefited by it ourselves. And the other thing, yes, adaptability, and finally reaching the goal or the success for not for only ourselves but for the society, for the other people also. Wonderful, Lala. Thank you so much. Shana, yes, Saleha, come on. अस्सलाम वालेकुम. हिना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. Yes, कैसी हैं साला आप? अल्लाह का शुक्र. अच्छा, मैंने जो चीज देखी, जो आजकल मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, कि आपको लड़ते रहना है, फाइट करते रहना है. आपको जैसी मर्जी सिचुएशन आए, आप उसको हैंडल करना है, मैनेज करना है और अपना बेस्ट देना है. वंडरफुल सालिया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है. To fight till end, you know. Great. You're moving towards topic. Sana, yeah, Sana. Sana, I could see late. इससे पहले आपने भी hand raise किया था. Are you in the session? Okay. चलें. You can share. या ठीक है, बिल्कुल मैं आपको सेशन शेयर कर देंगी बाद में. ईमान या ज़करिया कोई ना कोई शेयर कर देगा. मैं आपको बिल्कुल लिंक शेयर करूंगी. थैंक यू सो मच. वंडरफुल. एक चीज अगर आप लोगों ने बता चुके हो, अपने पॉइंट्स में डिस्कस कर चुके हूँ. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच. सनम को मैं देख रही थी. सनम ने हैंड रेज किया, तो मैंने कहा उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेते हैं. फीडबैक क्या है सेशन, सॉरी, इस वीडियो पे. ओके. अच्छा, एक चीज अगर आप लोगों ने नोटिस की हो, concluding all of your feedbacks on this video, जो भी आपका माइंड में ओपिनियन बना, जो भी आपने सोचा, एंड आई अप्रिशिएट कि आप सबने एक डिफरेंट थॉट शेयर किए. एंड टुगेदर वी मेक इट लाइक एक वो जब वो सर्कल से ट्रायंगल बना था, तो वहां पे मुझे एक बड़ी देसी सी इंटरेस्टिंग बात दिमाग में आई थी. मैं आपको साथ शेयर कर देती हूँ. ये था कि कुबड़े को जब लात पड़ती है तो वो सीधा हो जाता है. तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी उसकी सिचुएशन थी कि जरा पीछे से ऑलवेज आपको जो भी पुशेस मिलते हैं ना, इट्स नॉट फॉर योर बैड ऑलवेज. इफ यू सी समटाइम्स इट्स फॉर योर गुड. इवन आई बिलीव दैट ऑलवेज इट्स गुड फॉर यू, राइट?
इट्स नॉट लाइक कि कभी कभी आप होता है ना, देयर इज अ रीजन यू नो। और फिर मैं आपको दूसरी चीज बताती हूँ कि जब कोलैबोरेशन, आप क्लबिंग कर ले, आप, आप किसी और के साथ मिलकर अपने गोल को अचीव करने लग जाए तो उसका हाथ पकड़ लो जिसका आपको पता है कि पकड़ने से आपको फायदा होगा। सो ये सब चीजें कि दिस इज हाउ दिस इज हाउ वी शुड कैरी ऑन आवर जर्नी। सनम ये कुछ नहीं करना, किस चीज से मना करती हूँ वही करते हो। सनम गुस्से में आई तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमने गुस्सा सुन लिया, सब सब इसी तरह गुस्से में आते, कोई बात नहीं। ओके, सो अब मुझे आप बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर जब भी कोई टेंशन, परेशानी, गम, ठीक है, कोई मसला आता है तो वो टाइम लगाते हैं रिकवर करने में? कितने लोग, हैंड रेज करें, कितने लोग टाइम लगाते हैं? आई मीन यू टेक अ लॉन्ग टाइम, या आपको एक टाइम वाकई लगता है, लंबा सा टाइम लगता है रिकवर करने के लिए? रेज योर हैंड्स, बी ऑनेस्ट इन द सेशन, बी ट्रू टू द सेशन। आप हैंड रेस करें जहां पे आपको लगता है, डिजिटली भी हैंड रेस कर सकते हैं हम, ये जरूरी नहीं है कि आप अगर माइक नहीं ऑन कर सकते या कुछ, आप चैट बॉक्स में हैंड रेस कर सकते हैं। It's good to see you people taking some time. Let's reduce this time in the session. हम कोशिश करेंगे सेशन में आपका थोड़ा सा ये टाइम रिड्यूस कर लें जो आप रिकवर करने में लगाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सिचुएशन। अब यहाँ पे कुछ वो लोग होंगे जो जो रिकवर करने में टाइम कम लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि टाइम कोई नहीं लेता, बट टाइम कम लेते हैं। रेज योर हैंड्स, टाइम कम लेने वालों की बारी है। रेज योर हैंड्स जो टाइम कम लेते हैं, जो जल्दी जल्दी रिकवर कर जाते हैं इनफैक्ट। ये रुबीना, गुड टू सी यू। रुबीना देखो मेरी बात सुनो, ये तो मैं समझती हूँ कि अब मेकअप इंडस्ट्री में काम कर करके अब मेकअप करना तो आ गया, अब जल्दी जल्दी रिकवर तो कर ही लेती होगी। मैम वो जाहिरी नहीं, इंटरनली भी। इंटरनल मेकअप इज मोस्ट एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट। That's something interesting कि हम इंटरनल मेकअप जल्दी करते हैं, जरीना टू द सिचुएशन। लेकिन कुछ लोगों को लाइक एक फेनोमेना होता है कि कुछ लोग जरा जल्दी रिकवर करते हैं, वो किसी भी तरह की सिचुएशन होती है। हाँ, ये कि देखो डिपेंड्स करता है कि छोटी मोटी चीजें तो हमारे लिए समटाइम्स मैटर नहीं करती, कुछ चीजों पे हम ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, कुछ चीजें वो हमारे लिए वो आपको पता है कि कोर प्रॉब्लम्स होते हैं, तो डेली बेस की बात होती है, तो हम कहते हैं यार लेट इट गो। कुछ इस तरह की ग्रीफ्स होते हैं जैसे आपके किसी लव्ड वन कोई आपके चले जाए, जैसे आपकी कोई मदर, बहन, भाई, ये अल्लाह ना करे, बट कोई कोई और बहुत प्यारा आपका चला जाता है, तो वो उससे रिकवर करना आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल सिचुएशन होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब रिजिलियंस के बारे में अगर आप में से कोई मुझसे शेयर करना चाहे कंपोज्ड वे में, जो वो सोचता है कि दिस इज रेजिलियंस, तो शेयर कर सकते हैं। एनीवन, माइक ऑन करो और बोलो। सिंपल Yes, उसमें Rubina. कहूँ टू रिकवर फ्रॉम अ सिचुएशन। बिल्कुल, रिकवर फ्रॉम अ सिचुएशन, सेटबैक जो भी आपके पास आता है, एनी ग्रीफ, किसी भी चीज से, वो आप कितने जल्दी रिकवर करते हैं, दैट्स कॉल्ड द And yes, ma'am, रेजिलियंस। एक एग्जांपल आप, I think लेला when बोलिए। we take the positive from the negative, whenever something negative happens to us, and we take the positive aspect of this, that if the negative happens, there may be something positive that is relatable for this. लेला, थैंक यू सो मच। देखो, Power May of I cope up your share something? anger or situation. गुड टाइमा। Yes. यस, May I say जीना, something? Yes, ma'am. ये जरीन, आई एम सॉरी, आप कुछ कहना चाहिए? ओके, सालिया, आपने हैंड रेस किया है।
तो मैंने हैंड यस रेस किया था सानिया। कि मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लेती हूँ रिकवर करने में। मैं बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेस या उसकी बहुत डेप्थ में चली जाती हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो मैं उसमें मैं रेस किया था कि मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लेती हूँ रिकवर करने में, लेकिन फिर जब मैं अच्छा, लेती हूँ ठीक है। सॉल्यूशन के साथ ही फिर रिकवर होती हूँ। हाँ, वो एक्चुअली आप यू डीप डाइव इनटू द सिचुएशन टू ब्रिंग अ सोल्यूशन। कुछ लोग या सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं और वो टाइम लेते हैं। हाँ दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, बट पहले हम कोशिश करेंगे कि आपका जो ना कोई ऐसी चीजें करें कि जिससे आपका टाइम, सोल्यूशन के लिए भी टाइम कम से कम टाइम और ज्यादा इफेक्टिव टाइम आप लें। ओके वैसे फाइन। ये मेरा क्वेश्चन जी। है, ऑलमोस्ट क्या मतलब ज्यादा टाइम लेना ठीक नहीं होता, या कितना टाइम आपको एटलीस्ट लेना चाहिए मतलब अच्छा, ये रिकवर हम करने। सेशन में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। अगेन इट्स रिलेटेबल और ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, बट हम यही सेशन में डिस्कस करेंगे कि हाउ मच टाइम इज द इज क्वाइट फिजिबल टाइप किस्म का टाइम होता है जो आप जल्दी रिकवर कर जाए। सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस। ओके, आप सबके पास कोई चीज, पेन पेंसिल पेपर, एनीथिंग यू विच यू कैन ड्रॉप डाउन। आप ऐसे कोई चीज, आपके पास जो भी चीज है कोई जो आप नीचे गिरा सकें, आप जहां भी बैठे हुए, वट एवर यू हैव, अच्छा, यहाँ पर मैं एक एक जमीन पे। चीज ऐड करना चाहूंगी। हेलो। जी, जी सना। जी, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जाती राय भी मेरी है और मैंने इस पे एक्सपीरियंस भी किया है कि आप चाहे टाइम कम ले या ज्यादा, बट ये है कि आप अपने उस दर्द को, उस तकलीफ को एटलीस्ट उस टाइम तक हील करें कि वो आपको फिर दोबारा आफ्टर जो है वो 1 ईयर या 2 ईयर जो वो फिर दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आए वो पेन। वो चाहे वो कोई भी सिचुएशन है जिससे आप डील कर रहे हो, बट एटलीस्ट उसको इतना हील कर लो कि वो फिर दोबारा आपको तकलीफ ना दे। और अच्छा, और सना, इतना हील कर लो या इतने हीलिंग स्ट्रेटजीज आपके पास हो कि आप जल्दी से कॉप अप कर सके। ओके फाइन। आपने एग्जैक्टली, गिरा है, एग्जैक्टली। आपने, थैंक यू सना। ओके, यस। ओके फाइन, डिड यू ड्रॉप समथिंग? आपने पेन गिराया है और जमीन पे गिराओ। ओके फाइन, अब आप झुको और उसको उठाओ, पेन है, पेंसिल, जो भी गिराया है उसको झुक के उठाओ नीचे से। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। कुछ लोगों ने तो थोड़ा हाथ लंबा कर लिया होगा, कुछ थोड़े ज्यादा झुक गए होंगे, कुछ ने जरा, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद पाँव से ही पकड़ के ऊपर कर लिया हो। ये अवाम पाई जाती है दुनिया में, और ये इट इज नॉट लाइक कि कुछ भी अच्छा या बुरा तरीका दिया, लेकिन हाउ स्मार्ट यू आर, आसिफा, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, सो आपने एक चीज फील की है, जब आपकी कोई भी चीज, कोई भी सेटबैक, कोई भी मसला आता है, तो आपने, एक छोटी सी एग्जांपल है कि आपकी कोई चीज नीचे गिरी है, यू हैड सम लॉस, और आपने उस लॉस को रिकवर करने के लिए नीचे झुके, आपकी पूरी बॉडी मूव किए। आप जब नीचे वाली तरफ गए तो आपका ब्रेन नीचे गया है, आपकी बॉडी, आपके हैंड्स, सेम इज द केस कि जब आपके ऊपर कोई भी सेटबैक आता है, छोटी छोटी चीजें तो चलती रहती हैं, कुछ लोग छोटी चीजों को भी बहुत मल्टीप्लाई करके बड़ा बना देते हैं, वो तो फिर उनका उनका थोड़ा फॉल्ट होता है, वो उनकी पर्सनैलिटी में उन्होंने चीजें ऐसे प्रोसेस की होती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। बट इट इज लाइक कि आप जब भी किसी, ये पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करें कि रिजिलियंट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको गम नहीं होगा। रिजिलियंट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं होगी। और रिजिलियंट होने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको टाइम नहीं चाहिए होगा। आप पे इतना बड़ा गम गुजरा और अगले दिन आप जी हंस रहे होंगे खड़े होके एकदम, ये ऐसे नहीं हो सकता। आई नो इट टेक्स टाइम, बट हम इस टाइम को रिड्यूस करने की और इस सारे प्रोसेस के साथ कॉप अप करने के लिए हमें जो स्ट्रेटजीज चाहिए, जो टूल्स चाहिए, वो हमारे पास जरूर होने चाहिए। एटलीस्ट इस सेशन में मैंने कुछ ज्यादा नहीं प्लान किया आपके लिए। नासा, आप तो यार चैंपियन है, आप तो हमारी सेशन की प्रो बंदी है, नासा ने पाँव से ही उठाया है। मैंने कहा था ना कोई ऐसा जरूर होगा, क्योंकि मैं जानती थी हमारे पास बड़े जीनियस किस्म के लोग आए होंगे सेशन में, ये अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट वर्क वाले। यस, हु इज सलाम कर रहा है, हु इज सेइंग सलाम टू अस, या ओके फाइन, लेट्स गो, हम सेशन पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, आगे फिर चलते हैं। या तो आपको ये बात तो पहले समझ लें कि आपका दिमाग, दिल, जान, जिस्म और ताकत, ये सब चीजें लगती हैं अपने आप को रिकवर करने में। अब हमें देखना ये है कि इफ वी फेस एनी ऑफ द प्रॉब्लम, आपको पता है प्रॉब्लम समटाइम्स इतना स्वेयर होता है कि आपकी किडनीज डैमेज हो जाते हैं, आपका हार्ट फेलियर हो जाता है, यू you नो know? ये जो लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं, जो लोग बेचारे किडनीज उनके एकदम से फेल हो जाते हैं,
सर की जो तो ये एक्चुअली इनको रेजिलियंस नहीं होती इन लोगों के अंदर। आपने कभी देखा है? दिल एकदम से छोटा कर लेते हैं, उस चीज को बहुत बड़ा हावी कर लेते हैं। तो ये सबसे देखो, वो तो अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो तो हम बिलीव करते हैं फेट पे कि होगा। लेकिन आई एम सॉरी, कुछ चीजें हमारे समझने सोचने की ताकत से या तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं या उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं, आप कह दें, ठीक है। तो ये डिसाइड हमने करना है कि हम उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या रिड्यूस करना चाहते हैं। तो पहली बात तो आप एक्सेप्ट कर लें कि जिंदगी में गम आते हैं। आपको पता है, हम अल्लाह ना करे, लेकिन जब हमारा कोई प्यारा चला जाता है या हमारे साथ कोई ऐसा लाइक टोटल फेलियर आ जाता है, आप जिसको टोटल फेलियर कहेंगे, तो सबसे पहले बहुत ज्यादा टाइम हम उस चीज की डिनाइल में लगा देते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो डिनाइल में लगाते हैं? हालांकि हम सबका बिलीफ है, हम सबका फेद है, हम लाइक किसी रिलीजन से आप बिलीव करें, सॉरी बिलोंग करें, आपका ये फेद है कि हम सब ने मरना है, वी हैव टू डाई अल्टीमेटली, चाहे कुछ कर लें। तो हमारे साथ वाला अगर कोई चला जाता है तो हम इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। आपको पता है, अच्छा पहला स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तहरीम ऐसे आपके साथ नहीं है, ये सब लोग, मतलब सब लोग ब्लैंक हो जाते हैं। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, मैं कुछ अर्सा पहले तक तो ब्लैंक होती थी, लेकिन मैंने जो रेजिलियंस सीखी, वो कोविड में मेरे 1 मंथ में 5 डेथ्स हुई थी मेरे, लाइक आई मीन चचा, कजन, 3 चचा, 2 कजन, फिर एक मतलब सेकंड कजन, इस तरह। तो मेरे, आप कह दें कि एक ही समझ ले, घर तो चलो अलग अलग थे लेकिन फैमिली एक ही थी, और वो इतना क्लोज घरों में हमारी मतलब वो डेथ्स हुई। तो मुझे उस वक्त रेजिलियंस आई, मुझे उस वक्त पता चला कि एक्सेप्टेंस की कितनी, लाइक पहले जब कुछ डेथ्स हुई तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, राइट। जब कॉन्टिन्यूस होना शुरू होगी डेथ्स, तो फिर हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये अल्लाह की मर्जी है और इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। ये ये सोचना और उस वक्त ये कहना कि फाइन अल्लाह, हम तुम्हारी मर्जी पे, रजा पे, तेरी रजा पे राजी हैं, जो जो अल्टीमेट चीजें होनी है उस पर एकदम यकीन करो। पहली बात ये समझ लो, अगर आप किसी की डेथ की न्यूज सुनते हैं ना, जो सबसे वर्स्ट, लाइक आई मीन सैडेस्ट जो ट्रॉमा आपके लिए होता है, सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करो कि वो चला गया, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं आपको थोड़ा सा, मैं इसके ये हाई इंटेंसिटी से मैं चीजें शुरू कर रही हूँ, फिर थोड़ा हम लोगों की तरफ जाएंगे क्योंकि डेली मैटर्स पे चले जाएंगे। जब आप एक्सेप्ट कर लो ना, तो फिर पहला स्टेप आपके लिए ये है कि आप ये देखें कि उस वक्त उस बंदे की, देखो कॉन्शियस होकर सोच, अभी देखो अगर अनकॉन्शियस है ना तो फिर रो रो के बुरी हालत हो जाएगी, बुरी हालत, फर्क नहीं पड़ने वाला। ये होगा कि आप अपनी सेहत को खराब करेंगे, सब रोना सबको आता ही, नेचुरल है, रोएं आप, बिल्कुल रोएं, लेकिन उस चीज की डिनाइल में हम जो रोते हैं ना, वो हमें बहुत ड्रेन करता है। एक्सेप्टेंस के बाद आप जब रोते हैं तो वो एक सॉर्ट यू नो ग्रेटिट्यूड तो शायद उस वक्त नहीं होता है, लेकिन थोड़ा एक्सेप्टेंस के बाद जो हम रोते हैं ना, वो फिर थोड़ा सा सिचुएशन काम डाउन होती है, क्योंकि अब हमने एक्सेप्ट कर लिया, फाइन, बस अब हम याद में रोते हैं या उस तरह। तो डिनाइल में जो रोते हैं हमें पूरा ड्रेन करते हैं, क्योंकि हम कितने कितने दिन तो मान ही नहीं रहे होते, ठीक है। पहली तो बात ये, एक्सेप्टेंस की बात में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग, आप लोगों ने शायद पहले भी उसके बारे में पढ़ा होगा, सीखा होगा। मैं एक बहुत अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि इसको, हमारे पास जो टाइम है हम उसको बहुत मीनिंगफुली यूटिलाइज करें। तो मैं आपके साथ ना एक शेयर करूंगी, स्लाइड शेयर करती हूँ, या बल्कि स्लाइड शेयर करने से पहले थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते, फिर एंड में मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ, ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर आप इस वक्त सिचुएशन, अगर जिस जगह आप बैठे हुए, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ, अभी अगर आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, इस रूम में सिर्फ आपका इख्तियार अपने ऊपर चलता है, ठीक है। आपका इख्तियार उस बेड वाले पे नहीं चल रहा जिसने वो बेड बनाया, उस सोफे वाले पे नहीं चल रहा वो जिसने सोफा बनाया, राइट। जिसने दीवारें बनाई उस पर कोई इख्तियार नहीं आपका। आप उसको बताएंगे जरूर, इन्फ्लुएंस जरूर करेंगे, लेकिन इख्तियार नहीं होगा। समझ आ रही है? आप पैसा जरूर लगाएंगे, लेकिन अगेन फिर वो 10 नंबर चीज खराब कर लेता है, वो कैसी बनाता है, आपको दिखने में अच्छी लगती है, अंदर वो मटेरियल नाकिस लगा रही है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे अगर आप अपने आप को इस वक्त देखें भी, तो खुद भी देखेंगे कि हमारी बॉडी की जो ऑर्गन्स का वर्क है, जो काफी हद तक हमारे हाथ में और काफी हद तक हमारे हाथ में नहीं है। समटाइम्स सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि गिर के लग जाती है, तो वो हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। तो एक्सेप्ट इट
कि हमारे हाथ में कुछ चीजें नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास 3 तरह के सर्कल्स होते हैं जो हम सब के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैंने रेजिलियंस सीखी, जो चीजें मैंने पहली दफा जब मैंने रेजिलियंस पे काम शुरू किया था, माइकल एक रेजिलियंस एक्सपर्ट है, मैंने उसके साथ पहली दफा काम शुरू किया था, तो उसने मुझे जो चीजें सिखाई थी वो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ सेशन में। तो बहुत डिटेल ऐसी चीजें ना जाए, लेकिन हम वो चीजें जरूर सीख लें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इज दिस स्लाइड विजिबल? यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ। नजर आ रही Yes, है आपको ma'am, स्लाइड? it's visible. ओह गुड गुड गुड, ओके। देखिए, सबसे पहले हम बाहर चले जाते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न्स पे चले जाते हैं। व्हाट इज सर्कल ऑफ कंसर्न्स? मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, अभी मुल्क में पीटीआई नून लीग का क्या ड्रामा चल रहा है, मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरह की है, आप जितना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर लें इंडिविजुअली, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, ये तो मैं आपको बताऊं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत सारे सारे बिजनेसेस हैं, वो सारे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इकोनॉमिक उसमें इनपुट देते हैं, लेकिन स्टिल आपके हाथ में नहीं होती कंप्लीटली चीजें। मतलब ये कि आप अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हो, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल है सारा कुछ। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स किस तरह जाते हैं आते हैं वो आपके हाथ में नहीं, समझ आई? वेदर कंडीशंस क्या हैं वो आपके हाथ में नहीं है। आपकी वर्क इन्वायरमेंट में बाकी लोग क्या करते हैं वो आपके हाथ में नहीं है। कुछ ऐसी चीजें जो आपके हाथ में नहीं होती। आई एम सॉरी। ओके, द अदर थिंग इज, अगर इसके अंदर आ जाए तो हमारे हाथ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिन पे हमारा इन्फ्लुएंस होता है, वो कंप्लीटली हमारे हाथ में नहीं होती, पार्शियल, थोड़ा थोड़ा। इसमें जैसे सबसे पहले मैं आपको बात बताती हूँ कि हमारे बच्चे आ जाते हैं, फिर हमारी फैमिलीज आ जाती हैं, और वो चीजें, जैसे लेट्स सपोज कि एग्जांपल मैं आप लोग की देती हूँ कि प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन आप लोगों की कल, और उसमें यह है कि आपका इनपुट तो ये हो सकता है कि कि आप उसको बेस्ट प्रिपेयर करें और आप अपनी तरफ से कंप्लीट तैयारी करके जाएं। बट अगेन समटाइम्स आपको फीडबैक वाला बंदा ऐसा मिल जाए जो घर से सड़ा हुआ है, बेगम के साथ लड़ाई हो गई हो, बेगम की हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई हो, तो वो जो सड़े हुए मूड के साथ आए, उसको वर्क लाइफ बैलेंस का ना पता हो, उसको अपने आप को प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स का ना पता हो, अपने आप को घर का जो गुस्सा है वो ऑफिस में ले आए, तो आपका तो कोई कसूर नहीं है। तो इसमें पार्शियल इन्फ्लुएंस है। पार्शियल इन्फ्लुएंस में सर्कल ऑफ कंसर्न में तो हम फोकस करेंगे ही नहीं, आई मीन उसको तो थोड़ी देर साइड पे करो। पार्शियल इन्फ्लुएंस वो चीजें हैं, रेजिलियंस उन लोगों में कम होती है जो सर्कल ऑफ कंसर्न नहीं होती है, कम होती है जो सर्कल ऑफ कंसर्न को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर आपको रिफ्लेक्ट कराऊंगी तो आपको पता चलेगा कि आप किस किस चीज पे जो है वो ज्यादा फोकस करते हैं। एंड वन थिंग इज योर सर्कल ऑफ कंट्रोल। एक वो चीज है जो कंप्लीटली आपके हाथ में है। इस वक्त अगर आपकी, जैसे हमने एग्जांपल दी एक छोटी सी, की प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन की बात करें, टुमारो यू हैव टू प्रेजेंट समथिंग, इसमें जो आपके कंट्रोल में है वो कौन सा पोर्शन है कि आप प्रेजेंटेशन को कितना अच्छा बनाती हैं, हाउ ग्रेसफुली यू ड्रेस, हाउ प्रोफेशनली यू ड्रेस, आपकी टोन किस तरह की है, द सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन यू हैव, स्टाइल आपका क्या है, आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स किस तरह के, तो दैट्स टोटली इन योर कंट्रोल। आपका जो अपना काम है वो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, अब हम इस स्लाइड को बंद कर लेते हैं। स्टॉप नाउ। आपको कह रहे हैं कि आप अपने सामने एक पेपर पे लिख, जब फाइनल प्रेजेंटेशन जी यही हालात होते, पेपर पे लिखें कि आप ओवरऑल देखें कि आपका फोकस आज किन चीजों को कंट्रोल करने में होता है। लिखें, आप खुद लिखें, हमें अपना पैटर्न पता होता है कि हम किस चीज को ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे ऑन अ लाइटर नोट, बीइंग अ बेगम, हम अपने हस्बैंड को ज्यादा कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। तो और अगर बड़े बहन भाइयों में से सिबलिंग्स में आपका भी नंबर बड़ा है तो आप छोटों को कंट्रोल करने के चक्कर में होते हैं, हार्ट्स को कंट्रोल करने के चक्कर में हुआ। गुड गुड गुड, ओके। तो राइट डाउन, आप किसको कंट्रोल करने के चक्कर में होते हैं? आप किसके बारे में ज्यादा सोचते हैं? चले ऐसे इसको थोड़ा सा लेट्स रिफ्रेज द क्वेश्चन। आप किस चीज के बारे में ज्यादा कंसर्न होते हैं, किस चीज को ज्यादा सोचते हैं? ऐसे एक रिफ्लेक्शन ले लो ना, मुझे पता है कि मैं किस चीज के बारे में ज्यादा फोकस्ड होती हूँ। जैसे अगर अपनी आपको बात बताऊं, मैं अपने काम के बारे में बहुत फोकस्ड होती हूँ, और किसी दिन जो चीजें मुझसे मिस हो रही होती है मेरा दिमाग ऑल द टाइम उनके साथ चल रहा होता है कि इस टाइम मुझे ये करना चाहिए था, ये होना चाहिए
तो आप किस चीज के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं? जैसे स्टूडेंट्स शॉर्टकट के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं कि कोई शॉर्टकट पता चल जाए, वही टाइम पढ़ने पे लगा दे। भाई नहीं लगाते ना, वो शॉर्टकट ढूंढने में लगाते। क्यों जकरिया? okay, हाँ, लेना वो तो हमारा जो है ना प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेट लॉस के बारे में नासरा, ये तुम्हारा और मेरा बिल्कुल बिल्कुल मिलता जुलता जो है ना फोकस है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करती। जब फैमिली में बात हो रही हो तो मैं भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ कि हाँ मेरा भी वेट ज्यादा है। इससे कल ही हमारी फैमिली में बात चल रही थी, तो मैंने भी वेट किया तो सबसे ज्यादा वेट मेरा था, बट मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं थी, क्योंकि मैं कम नहीं करूंगी, वेट बढ़ाऊंगी तो बढ़ेगा। ओके, गुड, फाइन। अच्छा, अब आप ये देखें, जो भी आपका फोकस है उसके बाहर लिखो सर्कल ऑफ, उसके लाइक लाइन, उसको लाइन ड्रॉ करो, जिस तरह हम वो क्या कहते थे, लेबल करते थे चीजों को, डायग्राम्स को लेबल करते थे। राइट डाउन कि वो आपका सर्कल ऑफ कंसर्न में आता है, वो सर्कल ऑफ कंट्रोल में आता है या इन्फ्लुएंस में आता है। राइट डाउन, उसके साथ लेबल करो। रोजीना फाइनेंशियल तो ना पूछो, ये तो तुम वो जेफ बेजोस से भी पूछोगी ना तो वो भी फाइनेंशियल कंसर्न प्रॉब्लम्स पे जरूर कंसर्न होगा। तो ये तो मसले हैं जिंदगी के साथ चलने वाले। अच्छी अच्छी बात है, अगर हम थॉट कंट्रोल करें तो सारे ही कुछ कंट्रोल हो जाए। सर्कल ऑफ कंट्रोल, ये है निशा। ओके, फाइन, ठीक है। अच्छा, अब आप खुद अपने आप को एनालाइज करें कि अगर आप सर्कल ऑफ कंसर्न पे फोकस करते हैं ना, जो बिल्कुल आउटर, जो हम हर वक्त वीडियोस देख रहे हैं, और शेयर कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा कंसर्न है, डिस्कशन कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हालात हैं, मुल्क में हालात बुरे हैं, फलस्तीन में इस वक्त क्या हो रहा है। दैट्स ट्रू, मैंने आपको ये बताया कि वो हो रहा है, मैं इस पर आगे बात करूंगी। क्या आप अपना कंसर्न चेक करें जरा, वो हमारा कंसर्न जरूर होना चाहिए, बट दैट टोटल फोकस। कुछ लोगों की ऑल द टाइम में देखती हूँ कि उनकी सारी पोस्ट आज पिछले कुछ साल से जस्ट लाइक उनका काम कुछ हो रहा है, जॉब कुछ हो रहा है, लेकिन आई अप्रिशिएट, ठीक है उनका कंसर्न है, लेकिन उनका टोटल कंसर्न बना हुआ है मुल्क के हालात शेयर करना। कोई पोस्ट पीटीआई नून लीग की, जो दोनों आपको पता है ये दो चल रही होती है, उसके अलावा कुछ लोग हैं जो टोटल फलस्तीन के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो शेयर कर रहे हैं पोस्ट। ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट्स अ गुड पैशन, आपको शेयर करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आप कह दें कि जो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखने पे बहुत ज्यादा फोकस रख रहे हैं, ठीक है, और उससे आगे कुछ ना करने पे फोकस रख रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा अपने ऊपर आइडेंटिफिकेशन का एक लेबल लगाएं, चेक लगाएं कि व्हाट यू डू एक्चुअली। ठीक है, गेन मैक्सिमम नॉलेज, मैक्सिमम, ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर तो आपका पोर्शन ज्यादा सर्कल ऑफ कंसर्न पे आ रहा है तो फिर आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप ड्रेन हो रहे हैं, ये लिख लें साथ। अगर आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में अपने इन्फ्लुएंस से ज्यादा दूसरे के इन्फ्लुएंस पे ज्यादा फोकस करें, लेट्स सपोज कि अगर हमारे घर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वर्क प्लेस पे, तो हम कॉन्फ्लिक्ट में हमारा क्या रोल है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इससे ज्यादा फोकस हम कर रहे हैं अगले ने क्या किया। तो अगेन यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी एंड टाइम, अगले को तुम कंट्रोल कर ही नहीं सकती। ठीक है, हमारे अपने अम्मी अब्बा कभी हमारी बात ना माने तो ये तो बाकी लोग दूर की बात है जो। और फिर दूसरी बात ये है कि आप अक्सर फ्रेंड्स में, दो फ्रेंड्स में कोई ना कोई डिफरेंस ओपिनियन होता है, कुछ तो वो दूसरे को गलत कह रही होती है, खुद को नहीं गलत कहती। तो इस तरह की चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन, राइट। अगर आपका, जैसे आप में से किसी ने यहाँ पे कहा कि अपनी थॉट्स पे काम करना है, अपने नॉलेज पे काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, अपने बिजनेस पे काम करना है, अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग करनी है, जैसे रुबीना ने कोई प्लानिंग करनी हो, या नासरा आप अपनी जॉब को बेहतर करने के बारे में आप कोई आर्टिकल पढ़ लेती हैं, एवरीडे व्हाट एवर वर्क यू डू, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस में फिर आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ पोर इन कर रही हैं। तो जहाँ पे इन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करें, उसमें आप उसको दो हिस्सों में बांटें, उसको दो हिस्सों में बांटे, जैसे मेरे दो हाथ अलग अलग है ना, उन दोनों को अलग अलग करें। जहाँ पे आपका रोल है उसको आप 100% करने की कोशिश करें, ऑल्दो कि 100% नहीं होगा, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ 100% नहीं होता, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती।
होती, या तरफ से 100, देखो 100% होने में और 100% देने में बड़ा फर्क है, इस बात को भी समझो। लाइक यू आर गिविंग 100%, लाइक मैं इस सेशन में जो अपना बेस्ट कर सकती हूँ वो करूंगी। ये मेरा इन्फ्लुएंस में, देखो हम दो लोगों से मिलके सेशन चल रहा है ना, आपसे और मुझसे, ठीक है, आपसे, मुझसे, मैनेजमेंट से, इनफैक्ट 3 लोगों से। तो आप ये देखिए कि मैनेजमेंट अपना बेस्ट देगी, वो मुझे अच्छा कनेक्ट करेगी, वो कोऑर्डिनेट अच्छा करेगी, वो मुझे फैसिलिटेट करेगी, जैसे जकरिया ने मुझे को होस्ट बना दिया। मेरा क्या रोल है, मैं सेशन में जब डिलीवर कर रही हूँ तो कैसा कर रही हूँ, और आपका क्या रोल है कि आप मुझे अपना कितना इनपुट दे रहे हैं, मुझसे कितना कन्वर्सेशन स्टाइल में कितनी अपनी बात कर रही हो, मे बी टेक्स्ट में आप कर रहे होंगे, मे बी आप माइक ऑन करके कर, लेकिन आप अपना इनपुट दे रहे हैं। सो एक बात अगर आपके दिमाग में क्लिक करती है, उससे रेलिवेंट आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, तो आप आप कितना रिस्पॉन्सिबल है वो क्वेश्चन पूछने में, राइट? या आपको कोई बहुत अच्छी बात समझ आती है कि ये बात शेयर करने से, ये लेसन शेयर करने से, मे बी मुझे, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, तो एक्सपीरियंस की बेस पे लर्न किया, तो बाकी लोग शेयर कर, तो आप कितना अकाउंटेबल अपने आप को समझते हैं कि हाँ मुझे ये पता था और मैंने किसी को नहीं बताया तो किसी का लॉस हो गया, मे बी वो सेशन में आया तो आपने बता दिया, तो इट मीन्स उसने सीख लिया। तो इट इज लाइक डिवाइडेड, आपका जो पोर्शन है, और ये 50-50 होता है। आपका पोर्शन लेट्स सपोज के समटाइम 70% होता है, तो डिफाइन योर पोर्शन और उस पर काम करो, राइट? आसान बातें बता रही हूँ, बट वो वाली बातें जो आप डेली बेसिस में कर सकते हैं, मैं अभी मुश्किल बातों की तरफ नहीं जा रही, ठीक है? और सर्कल ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले, किसी ने यहाँ लिखा भी था, सबसे पहले कंट्रोल करना शुरू करो अपनी थॉट्स पे। वो होता है ना कि वो आप अपने ऊपर कहीं कहीं दिन के किसी हिस्से में ये चेक लगाया करो कि व्हाट यू थिंक, व्हाट यू डू, एंड हाउ यू बिहेव। ये 3 चीजें लिखे अपने पास, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू डू एंड हाउ यू बिहेव, या रिस्पॉन्ड या रिएक्ट। इसमें तीनों चीजें आ जाती हैं, आपकी सोच, योर एक्शन और योर इंटरक्शन। ये 3 चीजें आपकी आ जाती है, थॉट्स, एक्शन, इंटरक्शन। कि हम लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, बीइंग लाइक सोसाइटी मेंबर, या घर में, या जो भी ऑफिस में, हम एक्शन जो हम सोच रहे होते हैं, क्या उसमें से कुछ हम करते भी हैं, या उस सोच को बस दिमाग के अंदर ही रखा हुआ, उससे बाहर नहीं निकालना, राइट? तो प्रोक्रेस्टिनेशन थॉट्स को बेटे थॉट से कंट्रोल करेंगे, थॉट को जब कन्वर्ट करेंगे एक्शन में, राइट? वो किसी ने, वो मेरी एक स्टूडेंट थी, एक दफा मुझे याद है, 17-18 की बातों की, उसने मुझे एक दफा कहा, हम मोटिवेशन का टॉपिक यूनिवर्सिटी में जब मैं हुआ करती, मैं पढ़ा रही थी, तो उसने मुझे कहा कि मोटिवेशन को, अच्छा मैं ऐसे करती थी कि मैं उनको जब प्रेजेंटेशन देती थी ना, तो वो खुद उसको अपना जो भी उनका ओपिनियन होता था, जिस तरह वो उसको समझते थे, वैसे वो उसको प्रेजेंट करते। तो मुझे याद है कि मोटिवेशन की वर्ड को उसने इसी तरह बोर्ड पे लिखा था कि मोटिव प्लस एक्शन। और अगर आप मोटिव के पीछे आपका एक्शन नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं है। तो मैंने उससे ये बात सीखी थी कि अगर मोटिव के पीछे एक्शन नहीं है, उसको बैक नहीं किया एक्शन से, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको कोई फायदा नहीं, उस मोटिव को उधर ही रहने दो। उस मोटिव पे भी वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। तो मैं नहीं कहती कि आप 100% एवरीडे करेंगे, लेकिन छोटा छोटा करेंगे ना, स्टेप। लाइफ इज अ जर्नी, इसमें अप्स एंड डाउन एंड चीजें आएंगी, थोड़ा थोड़ा करके हम कॉप अप करेंगे। और रेजिलियंस भी एक दिन में नहीं आती है, ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ भी। अच्छा, मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताती हूँ। कभी कभी ना, आप जब कुकिंग कर रहे होते हैं, मेहमान आ रहे होते हैं, आपको पता ही होगा घर में जो लोग करते हैं कुकिंग, क्या, या कभी कभी कोई ऐसा होता है कि आपने बड़ी तैयारी की हुई है, प्रेजेंटेशन के लिए ऑफिस में बड़ी तैयारी है, सब चीफ गेस्ट बुलाया हुआ है, कोई गेस्ट स्पीकर बुलाया हुआ कुछ, तो एट द स्पॉट आपका वो नहीं चलता, आई मीन कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता, आपका सिस्टम नहीं चलता, माइक नहीं काम कर रहा होता, ऑडियंस इतनी ज्यादा है। अब क्या, उस लम्हे वहां खड़े होकर ये बात करनी तो ठीक चल रहा था, इस सेंटेंस से बेहतर नहीं, okay, let me see, और आप उसको फिक्स कर ले इतनी देर में, जितनी देर में हम तो पहले तो इस डिस्कशन वेस्ट करते हैं, मेहमान की बात में कि अक्सर हम लड़कियां जब कोई डिनर लंच कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं ना, सडनली आई स्वेयर कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर स्वीट डिश का बाउल बनाया है ना आपने, तो वो ऊपर से गिर के ठाक टूट गया, स्वीट डिश भी गिर गई, घर का कबाड़ा भी हो गया, बाउल। रिजिलियंस की मैं आपको बात बताती हूँ। तो मेहमान के लिए जो हमने प्रिपेयर, जितना चीजें प्रिपेयर किए, उसका सारा दारोमदार इस बात पे है
कि आप कितनी देर खड़े हो के वहां रोना धोना आपने किया कि ये क्या हो गया, ये उससे बेहतर है इमीडिएटली एक्सेप्ट करो कि टूट गया ना, टूट गया, फाइन, अब टूट गया है। रिसेंटली आई वाज जस्ट कुकिंग समथिंग एंड आई रिमेम्बर, मैंने बिल्कुल दूसरी दफा वो बड़ी एक्सपेंसिव मैंने वो ली थी, पतीली बड़ी एक्सपेंसिव थी मेरी, ठीक है। तो आपको पता है ना, जब नई नई चीजें बड़े शौक ना, तो जैसे मुझे नहीं पता, आई मीन नजर लग समथिंग राइट। तो मैं उसको देख रही थी, यार ये कितना फाइन स्टफ, कितनी अच्छी चीज। जब उसको वॉश करने लगी तो उसके ऊपर जो वो क्रिस्टल टाइप जो ढक्कन होता है, पता नहीं उसको स्टफ को क्या बोलते हैं, वो मेरे हाथ से गिरा। हालांकि ऐसे कभी हुआ नहीं, वो उसी वक्त मेरे हाथ से गिरा। मैं उसको धो के छोड़ रही थी, राइट, साइड में कबर्ड। वो मेरे हाथ से गिरा और किरची किरची हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने मैंने उसको देखा कि अच्छा टूट गया, फाइन, अब क्या करो, अब ये कांच उतार दो ना, पाँव में ना लग जाए। तो सो इट डिपेंड्स कि आप क्विकली, या पहले मैं ये यार वो मुझे मतलब भाई मैं दिल में सोच रही हूँ कि शायद वो मेरी नजर लगी हो, लेकिन मैं ऐसे सोच रही थी कि पाकिस्तान में कितनी अच्छी चीजें मिलती हैं, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। मैंने खाना जब बनाया उसमें तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैं ये बात सोच रही थी। और देखिए वो मुझे चीज अच्छी लग रही थी ना, उसी वक्त गिर के टूट गई। अब मैं उसके अफसोस में ज्यादा वक्त, टूट गई है, मैं टूट गई, एक्सेप्ट है, टूट गई है, फाइन, उससे बेहतर मिल जाएगी। तो मैंने ना अपनी मदर इन लॉ को बुलाया, मैंने कहा आंटी ये देखें ये क्या हुआ है। तो खैर अच्छी बात ये कि उन्होंने बड़ा एनकरेजिंग सेंटेंस बोला कि अब उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है कि कोई बात नहीं, अल्लाह इससे और अच्छी दे देगा। तो इट इट डिपेंड्स। समटाइम्स आपको ये सेंटेंस खुद बोलना पड़ता है अपने आप को, समटाइम्स कोई बोल देता है, कोई अच्छे लोग होते हैं तो आपके सारे सराउंडिंग्स में तो बोल देते हैं। सो ऑलवेज लाइक जब भी कोई ऐसा लॉस आपके पास है, छोटा मोटा ये वो, आप कहें कि अच्छा कोई बात नहीं, इससे कुछ बेहतर होगा, पहले तसल्ली दो अपने आप को, एक्सेप्टेड कि हो गया। पहले तो एक्सेप्ट करो, एकदम एक्सेप्ट करो कि हाँ हो गया। रेजिलियंस शुरू होती है एक्सेप्टेंस से। और फिर आपको पता है कि आप सिर्फ इतनी इतनी बात देख लेना, जब भी कोई लॉस इन ग्रीफ आए उसमें सिर्फ इतनी बात देख लेना कि आपके हाथ में था या नहीं, दैट्स इट। वहां से आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। जो आपके हाथ में नहीं है उसके पीछे एनर्जी वेस्ट करना, ड्रेन करना कोई फायदा नहीं है, राइट। तो अब हम थोड़ा सा आगे अगर चलेंगे, अभी मैं आपको चीजें थोड़ी सी समझाई है कि अब आपको करना क्या है। पहले तो ये सर्कल ऑफ जो कंट्रोल्स है ना, सॉरी ये जो सर्कल्स है ना तीनों, कंसर्न का, इन्फ्लुएंस का और कंट्रोल का, ये मैं अब अपने ऊपर इन तीनों चीजों से चक लगाती हूँ। मैं पहले देख, कोई भी मसला होता है ना, मैं देख लेती हूँ कि मेरे हाथ में है या नहीं है। अच्छा एक और चीज में, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन आप इस चीज को समझें। समटाइम्स चीजें हमारे हाथ में होती हैं और हम ये समझ के छोड़ देते हैं कि ये सर्कल ऑफ कंसर्न है, छोड़ो ये हमारे हाथ में नहीं है। तो फाइंड योर पॉसिबल इनपुट या कंट्रीब्यूशन, जो भी आपका है, पॉसिबली देख लें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो कर सकते हैं सिर्फ उतना ही करें, उससे आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बिल्कुल बहुत क्लियरली समझा चुकी हूँ कि असल में आपने क्या करना है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा ना, आप में से कितने लोग, अभी देखो ये तो थोड़ी ऐसी बात है कि क्योंकि आज वुमेन का सेशन है तो मैं आपको थोड़ी सी और भी चीजें बताऊंगी जो प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। बिकॉज हम सारे लोग ऑफिस में काम कर रहे होते, नहीं भी कर रहे होते, तो लाइक हाउस वाइफ भी होती है तो घर के भी काम काज, क्योंकि हाउस वाइफ के ऊपर फैमिली बर्डन थोड़ा ज्यादा होता है। और मैंने एक चीज नोट किया, पता नहीं आप लोगों ने भी किया नहीं, कि जब आप जिस दिन आप घर में रहते हो ना तो घर का काम बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इवन किसी दिन आपने ऑफिस से छुट्टी की हो ना, छुट्टी हम इसलिए करते हैं रेस्ट करेंगे, क्यों ना असरा। तो जब हम रेस्ट करने के लिए छुट्टी करते हैं तो घर के 100 काम, और हमारे सामने वो दीवार भी है, वो अलमारी भी है, टोटली वो ये एग्री, भी है। बिल्कुल बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता तो, कि अगला काम कौन सा है, काम खुद आगे आ रहा होता है। और आपने छुट्टी क्यों की होती है? रेस्ट रेस्ट करने के करेंगी लिए। थी, और रेस्ट। तो वो रेस्ट कन्वर्ट हो जाती है हमारी अनरेस्ट में। तो पहले तो इस वो चीज को भी, हम अच्छा लोग फिर अभी, शाम। सॉरी आपकी बात काट दी, अभी एक न्यू टर्मिनोलॉजी है वर्क फ्रॉम होम। तो हाँ। जब से ये टर्मिनोलॉजी आई है तो हमें समझ ही नहीं आई कि ये क्या है, क्योंकि आप घर पे वर्क फ्रॉम होम भी होते हैं और वर्क वर्क फॉर होम भी हार होते होम भी हैं। होता है और वर्क तो इन होम भी यस, होता आई है। टोटली एग्री। वेरी गुड। और पता क्या, शाम को ना, अच्छा ये भी मैं आपको मजे की बात बताती हूँ। शाम को हम इस बात पे अफसोस करते हैं, जैसे माय मदर वाज अ प्रोफेशनल, वो टीचर थी, ठीक है। तो वो क्या करती थी, वो किसी दिन बेचारी छुट्टी करे, मुझे अभी भी याद है, मेरे अम्मी अब्बू की बड़ी दोस्ती थी ना आपस में।
तो वो क्या करते थे कि वो दोनों मिलके छुट्टी करते थे। अच्छा, जब मिलके छुट्टी करते थे ना, तो होता ये था कि घर के इतने काम निकल आते थे, और मुझे मैंने हर शाम को अम्मी को सुना ये कहते हुए कहती थी कि छुट्टी इसलिए की थी कि मैं सोचती थी कि रेस्ट करूंगी। तो इस छुट्टी करने का मुझे फायदा क्या हुआ है? बेहतर ये कि छुट्टी ना ही करती, वो अफसोस में कन्वर्ट हो जाती है, वो जो छुट्टी करने की एक्साइट। अच्छा, और हम इतने बेवकूफ है, हर दफा जब हम छुट्टी करेंगे यही सोचेंगे। अब अब देखो, इस सिनेरियो को हम कैसे कॉप अप करेंगे। ये बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन आपकी लाइफ में ग्रेटली इम्पैक्ट करती हैं। ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है कि हर दफा जब आप रेस्ट के लिए छुट्टी करें तो आप काम में लग जाएं। तो आप देखें, आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी कि हर दफा और फिर आपको छुट्टी करने को भी दिल नहीं करेगा। इस बात को आप लोग एक्नॉलेज करें कि फिर आपको छुट्टी करने को भी दिल नहीं करेगा कि क्या फायदा छुट्टी करने का। स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, वंडरफुल। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, जब आप छुट्टी करें तो हल क्या है। मैंने जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, और फिर मैंने अपने आप को समझाया कि क्या करना चाहिए। 3 हिस्से में टाइम को ब्रेक करें। 3 हिस्से में एक टाइम जो है वो कंप्लीट आप अपनी रेस्ट का रखें। वो आप खुद अपने घर का जो है ना, इट्स रिलेटिव, जाहिर है हर एक बंदे के घर के हिसाब से ही चीजें होंगी। आप देख लें कि कौन सा टाइम है जो आप सिर्फ अपने आप को दे सकती हैं छुट्टी वाले दिन। जैसे लैला ने कहा ना, जैसे मुझे भी ये बात ठीक कह रही है, जिससे मुझे ज्यादा सारा काम हो मैं पहले रेस्ट करती हूँ। तो छुट्टी इस मकसद के लिए किया, रेस्ट कर रहा हूँ, फिर घर के भी काम होते हैं, वो भी करने हम नहीं होते। तो 3 हिस्सों में डिवाइड करो। एक रेस्ट का टाइम, एक घर के कुछ काम लिस्ट डाउन कर लो कि ये काम मैंने इस छुट्टी में करने। अच्छा, ये तो कंफर्म है ना कि हमने छुट्टी में पूरा दिन तो रेस्ट नहीं करनी, काम ही करने। तो उसमें से कुछ काम जो अपनी इस छुट्टी में करने, वो आप लिस्ट डाउन कर लें। और तीसरी चीज, शाम को घर में मियाँ बच्चे या बहन भाइयों के साथ या फ्रेंड्स के साथ एक उस टाइम को भी आप बिल्कुल टाइम एनर्जी को मैनेज करने से 3 हिस्सों में, ठीक है। और जब आपका, एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब आप रिलैक्स होके सो के रेस्ट करके, रेस्ट आई डोंट नो आप कैसे करते हैं। समटाइम्स तो मैं वैसे ही सोती नहीं हूँ, बट बैठ के कुछ अच्छी थॉट से भी मेरी रेस्ट हो जाती है। आपकी बॉडी कूल फील करना शुरू करती है, और ये सब माइंड आपका रिलैक्स होता है। आपका माइंड किस चीज से रिलैक्स होता है? सोने से रेस्ट नहीं होगी। माइंड जिस चीज से रिलैक्स होता है पहले वो काम करो, ठीक है। और अपने आप को रिलैक्स करके उसके बाद अब जितना काम करेंगे आप कर सकते हैं, मैं आपको एक गारंटी देती हूँ। और फिर आप जब कुछ अच्छी सी लेट्स कोई डिश बना लेते, कुछ तो शाम को, अगर क्वालिटी फैमिली टाइम, अगर फैमिली मेंबर्स लाइक आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या आप कोई क्वालिटी इवेंट बना सकते हैं, कुछ छोटी मोटी अच्छी सी चीज बना के, जिससे आपको थोड़ा सा डिफरेंट फील हो, थोड़ी प्लेजेंट फील हो, राइट। सो इट डिपेंड्स। 3 हिस्से में टाइम ब्रेक करो अपने लिए, घर के काम के लिए, फैमिली के लिए। फिर आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। फिर अगली दफा आप छुट्टी मैनेज करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे छुट्टी को इन सच अ वे कि आप स्ट्रेस्ड एंड फटीग भी ना फील हो आपको, और आपका छुट्टी भी आराम से गुजरे। तो ये कुछ चीजें जो आपको मैंने समझाई है कि ये आपने करनी है। लेट्स सपोज कि किसी दिन आपने डे आउट प्लान किया है, ठीक है, डे आउट प्लान किया, तो उस दिन भी घर के पहले वाले काम और घर के बाद वाले काम, चलो उनको मैनेज करके फिर डे आउट करो, ताकि आपके ऊपर बर्डन और स्ट्रेस ना हो। हमने सबसे पहले अपने आप को डी स्ट्रेस करना है किसी भी चीज के लिए, अदर इट्स रेजिलियंस, चाहे कोई काम है या कुछ भी, लेकिन आपको डी स्ट्रेस करना अपने सो आप में से कितने लोग वैसे ये हाथ शात देखते हैं, हाथ शात पे बिलीव करते हैं? कितने लोग करते हैं? किसी को कभी किसी ने बता दिया हो कि तुम्हारी किस्मत क्या है, और वो सच निकला हो? कई दफा चैट हुआ बॉक्स ऐसे। में। मैंने हुआ सुनी हाँ, थी ये। नासरा। मैंने मुझे हुआ एक्सपीरियंस। जी मारो। हाँ जी। है ना। मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। मेरे एक रिलेटिव ने एक दफा मेरा हाथ देखा था, और उन्होंने कहा था कि आप एज के जिस हिस्से में पढ़ना चाहेंगी आप पढ़ सकती हैं, और जो करना चाहेंगी आप कर सकती हैं। और इनफैक्ट यस, नाउ आई एम 46, इनफैक्ट 47, एंड यस, आई एम डूइंग माई PhD। अब इस उम्र में जब आप कहती और हैं कि खत्म और हो नादिया गई आपकी। और नादिया ने बिलीव कर लिया कि अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, नहीं करना चाहूँ तो नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच नादिया शेयरिंग। ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल, मैं आपकी जो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ना, मैं आपको एक जोक सुना देती हूँ, आप लोग को जरा लाइट नोट।
एक दफा ना मेरी एक दोस्त हाथ देखती थी, और सही परफेक्ट चक्करबाज किस्म की दोस्त थी, ठीक है, बहुत चक्करबाज थी। और मुझे याद है कि दोस्ती इतनी नहीं थी आई, लेकिन वो आपको पता है स्कूल के फ्रेंड सारे ही दोस्त होते हैं, स्कूल की मैं आपको बात बता रही हूँ। और होता ये था कि वो हाथ देखती थी, और जिसका हाथ देखती थी सच हो जाता था। होता क्या था कि वो जो उनको बताती थी वो वही चीज से निकल आती थी, और सारे स्कूल में मशहूर हो गया। वैसे तो पूरा स्कूल उसको जानता था कि ये मतलब इतना क्रेडिबल नहीं साबित होता, लेकिन हाथ देखने की स्टोरियों के बाद वो बड़ी क्रेडिबल मशहूर होगी। तो सारे लोग उसके पास आना शुरू हो गए, ब्रेक में उसके पास रश लगाओ, ऑफ टाइम में जब छुट्टी हो जाए हमें, तो उसके पास रश लगाओ कि मेरा हाथ देखती है। मुझे तो पता था शैतानी करती है। अब मैंने एक दिन उससे पूछा कि तेरे पास गुर क्या है? तूने किससे हाथ देखना सीखा? मैं भी इंस्पायर हो गई कि शायद कोई इसने देखा हो। तब पे वो बड़ी बड़ी मारती थी, वो पता नहीं मेरा शोएब अख्तर मेरे पता नहीं मामे का पता नहीं क्या लगता है, वकार यूनस ये है, शाहिद अफरीदी, ये बहुत बड़ी बड़ी गप्पे मारती थी। मुझे पता था कि ये कोई चक्कर कर रही है, लेकिन फिर मैं भी थोड़ी सी हो गई कि यार क्या पता शायद इसने कुछ देखा ही हो। तो मुझे कहती है कि मैं तुझे एक शर्त पे बताऊंगी, अगर तू किसी को नहीं बताई। तो मैंने ऐसे पूछा कि चल मैं नहीं किसी को बताती, तो बता। उस वक्त बात पूछने के लिए हम कहते थे नहीं बताते, तू बता दे किसी तरह। तो उसने मुझे कहा देख मुझे आता जाता कुछ नहीं है, मैं सिर्फ उनको ये कहती हूँ कि अगर तुम ये करना चाहो ना तो कर सकती हो। समझ आ रही है बात? वो कहती थी मैं इनको कहती हूँ कि तुम अगर ये करना चाहो ना तो कर सकती हो, तो कहती है ये, मुझे अभी भी याद है उसकी बात। उसने कहा मुझे ये तो पता है अगर ये करना चाहे तो कोशिश करेंगे तो कर लेंगे। तो बात वही है कि नादिया को किसी ने कहा अगर तुम जिस उम्र के जिस हिस्से में पढ़ना चाहो तो पढ़ लोगी यार, अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दिए है, तुम माशाल्लाह इतनी समझदार हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हो, लेक्चरर हो इतने टाइम से बच्चे को, तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकोगी? व्हाट इज दिस? ये कौन सा फेट वाला इतना बड़ा उसने बात कर दिया जिसपे तुमने इतना बड़ा बिलीव बना लिया कर। मैं बगैर हाथ देखे ये बता रही हूँ कि तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, मैं आप सबको बता रही हूँ। आप सबके हाथ में देख लेती हूँ। टेक्निकली चीजों को समझे। वो मेरी दोस्त ने मुझे कहा ना कि कहती है यार मैं इनको सिर्फ ये सिखाती हूँ कि तुम अगर ये करना चाहो तो कर सकती हो, अगर ये करना चाहेंगे तो करेंगे ना, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। उसने कहा इसमें मेरा क्या रोल है? और वो वाकई वो इतनी मशहूर हो गई कि ये बहुत अच्छा हाथ देखती है। और बात वही है कि अगर मैं आपका ये हाथ अभी देख के हाथ अपना सामने कर लें, बेशक आप खुद देख लें, मैं आपका हाथ यहाँ से रीड कर रही हूँ और आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते ना, तो आप प्रोक्रेस्टिनेटेड भी बन सकते हैं और बेड पे भी लेट के सिर्फ सोच भी सकते हैं। तो ये दोनों काम तो आपको सच ही लगेंगे कि रूबीना मेकअप इंडस्ट्री में उसने कदम रखा होगा, किसी ने कहा होगा तुम ये कर सकती हो, करना चाहो तो कर सकती हो। नहीं तो देखिए दूसरी बात भी तो मेरी सच ही निकलेगी कि अगर तुम ना करना चाहो ना, तो तुम बेड पे भी लेट सकती हो, तुम सिर्फ खाली सोच भी सकती हो, तो मारो को आप समझ आइए स्टोरी। सो इट इज लाइक वो, और वो बहुत मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोग फिर बहुत अथेंटिक हो जाते हैं। कहने का मकसद सारा सिनेरियो ये है कि जिस चीज पे बिलीव करेंगे तो क्या होगा, वही सच हो वो हो जाएगी। जाएगी, वही सच हो जाएगी। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बताती हूँ। किसी बुक में लिखा है, शायद अल्केमिस्ट में लिखा है, आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो तो, कहते हैं कि जब तुम किसी काम को करने का इरादा करते हो ना, तो कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हें सपोर्ट करना शुरू कर देता है। आप मुझसे लिखवा के लें, अगर आपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल के साथ कोई काम शुरू किया है ना, और आप करना चाहते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं उसके कनेक्शन नजर आएंगे, लिंक्डइन पे नजर आएंगे, फेसबुक पे उससे रेलिवेंट चीजें नजर। अब तो अब तो ये जो ये फोन है ना, ये आपकी जो वाइब्स एंड बीट्स को रीड करता है, पता नहीं क्यों होता है, तो आपको वीडियो नजर आना शुरू हो जाती है ना। तो इस दौर में भी अगर आप अपने आप को इस गम में डालें कि हम कुछ कुछ लोग पता है कि इस गम में वो रेजिलियंट इसलिए भी नहीं होते कि वो अक्सर गम में रहना पसंद करते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, ये नहीं हुआ। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इज योर ऑलवेज योर राइट एंड प्रायोरिटी। और एक बात अब इस चीज के साथ ये बात भी समझ लो कि जब भी कोई काम करोगे ना, अगर वो काम देखो, लेट्स सपोज कि मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ कि अगर लेट्स सपोज कि ये हमारा ट्रैक है ना, और अगर हम सीधा सीधा चलेंगे ना, सीधा सीधा सीधा, और आप टोटल सक्सेसफुल ही जा रहे हैं, आपको कोई फेलियर नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका ट्रैक कोई गड़बड़ है, सही नहीं है। ये मैं आपको अभी बता रही हूँ।
अगर यहाँ पे फंसे ना, अपनी ट्रैक शुरू किया यहाँ फंसे, या आपको कोई चैलेंज आ गया, इसका मतलब है यू आर राइट, अब आप ठीक जा रहे हैं। तो रेजिलियंस जो चीज है ना, वो ये एक्सेप्ट करती है कि चैलेंजेस आर नॉर्मल, सेटबैक्स आर नॉर्मल, ये सैडनेस, ग्रीफ, ये सब चीजें नॉर्मल है। अगर इसके बगैर कोई चीज है तो ये अब नॉर्मल है, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो एक्सेप्ट इट एंड एक्नॉलेज इट कि कोई भी चीज चैलेंजेस के बगैर सही नहीं होती। रेजिलियंट लोगों ने अपना बिलीफ बनाया हुआ है, मैंने अपना बिलीफ बनाया हुआ है कि हिना जिस दिन तेरा काम सीधा सीधा हो रहा है ना, मतलब कि आखिर में गड़बड़ आएगी। जब गड़बड़ शुरू में होगी तो मुझे खुशी हो जाती है कि अच्छा ये मसला आया, मैंने इससे सीख लिया। आपको पता है ये जितने मतलब अभी भी जैसे मैं आपको बात बता रही हूँ कि मैं कनाडा में रह रही हूँ, तो मेरे बच्चों को ना एक इंटरेस्टिंग, मुझे इनकी एग्जांपल मतलब मैं आपको दे रही जो मुझे अच्छा लगा। इनके स्कूल सिस्टम में ये कि कोई बच्चा किसी भी ट्रस्ट में ना उसके नंबर कम आते हैं या कुछ इस तरह, पहले तो टेस्ट इस तरह नहीं होते जिस तरह हमारे होते हैं, लेकिन दूसरी चीज बड़ी प्रैक्टिकल चीजें होती है। अगर किसी चीज में नंबर कम आते हैं ना किसी जगह बच्चे के, बिल्कुल 0 नंबर भी आता है और अगले दिन या 2-3 दिन के बाद या 10 दिन बाद भी वो जाके कहता है कि आई वांट री अटेम्प्ट इट, राइट, कहते मोर देन वेलकम, आज जो बैठो। और वो फिर पता है क्या करेंगे, ये भी आप सुने, जो फाइनल रिपोर्ट उनकी बनेगी वो फिर बाद वाले टेस्ट के नंबर लगाएंगे। और वो इतना अप्रिशिएट करते हैं रीटेस्ट में, उसकी पता है क्या वजह है? वो मतलब मैंने ये सीखा कि दे अप्रिशिएट कि वो आपने गलती से सीख लिया है, तो आपको पता है फिर वो वेटेज ज्यादा मिलती है आपको कि गलती से सीख लिया है। और मेरे मेरे बेटे को पिछले दिनों ना क्विज था, मैं अब कुछ वीडियोस में अपलोड भी करूंगी यूट्यूब पे, ताकि बाकी लोग भी इस चीज से सीखें और पाकिस्तान में अगर एजुकेशन, और वो ऑनलाइन अभी इन बच्चों को आई मीन 7 में है तो उसके पास ऑल द टाइम लैपटॉप पे वो दोनों, उस छोटी भी जो है वो उस पर पढ़ती है, तो वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ज्यादा गेम्स गेमिफिकेशन से ज्यादा चीजें सिखाते हैं। जैसे मैथ्स की एप्स है तो उनकी गेम्स के लेवल हैं इस तरह से। तो उसने क्विज दिया ना, मेरा ख्याल है कि किस सब्जेक्ट का टॉपिक हो मुझे नहीं पता, लेकिन अर्थक्वेक पे टॉपिक था, अर्थक्वेक पे, ये साइक्लोन्स पे और इस तरह की। अच्छा क्विज तो वो एक दिन देख के आया और दूसरे दिन ना नेक्स्ट टाइम उसका ऑनलाइन फीडबैक आया हुआ था क्विज पे, मैं उसके साथ बैठ के मैंने वो वीडियो बनाई भी है, उसकी मैं अपलोड करूंगी इंशाल्लाह कभी मुझे टाइम मिलेगा। वो क्या था, अब उसका क्विज का जो उसने दिया था उसके बाद उन्होंने उसको प्रैक्टिकल समझाया हुआ था ऑनलाइन ही, वो उसको पूरी एग्जाम्पल देके कि ये जो आपने क्वेश्चन ठीक किया है ना, उसका बैक एंड पे सिनेरियो ये है, इस वजह से आपने ठीक किया, आपको ये चीज समझ है। एक क्वेश्चन उसका गलत था 10 में से, अब वो जो क्वेश्चन गलत था ना उस पर उन्होंने थोड़ा डिटेल फीडबैक दिया हुआ था और उसको समझाया हुआ था कि तुमने ये मिस्टेक की थी इस वजह से, समझ आई? तो अगर हम जो हमारी मिस्टेक्स होती है ना, हम उनसे लर्न नहीं करते, तो फिर हमें एक्सेप्टेंस में और जो चैलेंजेस ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर हमने पिछली, लेट्स सपोज के नासरा के पास या रुबीना के पास, लाइक लेट्स रुबीना की बात करते हैं, कोई मेकअप इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट का टेस्ट होता है, ठीक है, और आपको टेस्ट में पता चल जाता है कि ये इस वाली स्किन टाइप पे एलर्जिक है, ठीक है, और आप क्या करते हैं, आपने टेस्ट में शुरू में ये चीज जान ली, तो आपने वो सारा बैच प्रिपेयर जो मॉक आपने किया है, लाइक जो सैंपल है उससे ही आप प्लान कर लेते और फिर आपका पूरा बैच खराब नहीं होता, राइट? और अगर तो फिर आप ना माने और फिर मार्केट में जाएगा गाइड होंगे आपकी प्रोडक्ट्स फ्लॉप। तो अगर आप लर्निंग कर लेना गलती से शुरू में, तो आपकी रेजिलियंस बढ़ना शुरू कर देती है। तो एक्सेप्ट करें मिस्टेक्स को, फाइन हो गई है ना, क्या हुआ, इंसान से होती है, हाँ अब बताओ क्या करना है, अब अपने आप से भी पूछा करो कि हाँ अब क्या करेगी। तो जब आप अपने आप से पूछते हैं ना अब क्या करेगी, तो फिर जवाब आता है कि अब नेक्स्ट स्टेप इज अब क्या करो, सोल्यूशन की तरफ कैसे जाना। ये सवाल अपने आप से नहीं करोगे तो आंसर भी नहीं मिलेंगे। ओके फाइन, लेट्स कम टू द टूल्स ऑफ बिल्डिंग रेजिलियंस। आपको क्या लगता है कि आपके दिल दिमाग जान और रूह, ठीक है, दिल दिमाग जान और रूह, माइंड, बोलो, माइक ऑन करो, माइंड, आगे बोलते जाओ, दिल दिमाग जान और रूह को क्या क्या बोलेंगे? माइंड, Mind, heart, soul, Mind, हाँ, heart, soul, spirit and soul. body and soul, very good, yes you are with me, I appreciate, clap for you.
ओके। हाँ, मैं बहुत ज्यादा सेशन में जरा हो जाती हूँ, मेरे रूम में सारे लोग सो रहे हैं, इसलिए मैं जरा थोड़ा सा आहिस्ता भी बोल रही हूँ, ऊंचा बोलती हूँ फिर क्या हाल आ जाता है, अच्छा, आप देखें कि क्या ऐसी चीज आप अपने पास चैट बॉक्स में मेंशन करें, क्या हम ऐसी प्रैक्टिस करें, आपको क्या लगता है ना, सबको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आएंगे, क्या ऐसी प्रैक्टिस करें जिससे हमारा माइंड भी एनरिच्ड हो, हार्ट बॉडी सोल स्पिरिट सब चीजें। चले, कम ऑन, टाइप इन द चैट बॉक्स वॉट एवर यू थिंक, आसिफा वंडरफुल ब्रीदिंग, गुड गुड गुड, ये कम ऑन, जो भी आपको लगता है, कोई एक प्रैक्टिस, एनी एक्टिविटी, एनीथिंग, एनी फिनोमेना यू वांट टू अडॉप्ट। रिलैक्सिंग, किस तरह रिलैक्स करेंगे गुरु? Oh wow, self conversation walk, ये exercise, ये वाह वाह वाह, फीड एनिमल्स सालिया, अपना पैशन जिंदा रखा हुआ है। बर्ड्स, सेल्फ टॉक, अपने बारे में बात करो, बिलीव इन अल्लाह, या बिलीव इन अल्लाह, बट ओके, लाइक बिलीव इन I अल्लाह, have रिलैक्स करेंगे, लेकिन Surya बट Rahman. सूर्य रहमान, ओके गुड, यू आप अपने आप को रिलैक्स करोगे, चेंज योर सेल्फ कन्वर्सेशन, यस, सेल्फ टॉक वंडरफुल, सेल्फ कन्वर्सेशन, यस, एनालाइज द सिचुएशन, गुड, बिल्कुल, लिसनिंग टू द सॉफ्ट म्यूजिक मे बी गुड, वंडरफुल वंडरफुल, सेल्फ लव, शेयर एंड ह्यूमैनिटी, गुड, ओके। बट व्हाट एक्टिविटी, जैसे मेडिटेशन, किसी ने कहा सेल्फ रियलाइजेशन में क्या करोगी, आई मीन सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कोई एक्टिविटी क्या करोगी, स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली, ठीक है, गुड, ओके, दिस इज एन एक्टिविटी, राइट, बिलीव ऑन अल्लाह एंड ऑलवेज थिंक, स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल्स। नासरा, क्या करोगी, कोई एक चीज बताओ, कोई एक्टिविटी बताओ, क्या करोगी? मेडिटेशन, ओके फाइन, ठीक है, ब्रीदिंग, मेडिटेशन, गुड, सोशलाइजेशन, वंडरफुल, आसिफा सॉरी, बर्ड्स, अमनी हाली वाटना, ओके गुड, ठीक है, गुड, इससे आपका सोल माइंड बॉडी, after prayers investigation but without being a religious we can think positive more and more, yeah, you're very inclusive by the way, community engagement, family engagement, wonderful, breathing, yoga, good, I love to read books, wonderful, okay, पोइट्री, कोई हम पोइट्री यहाँ पे जरा लिख लेंगे तो अच्छा भी होगा हमारे लिए, ओके, हमने वो है, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, वंडरफुल वंडरफुल, है, आपने कोई, आपके पास जार है नासरा, साल का आखिर आ गया, कोई ग्रेटिट्यूड जार बनाया हुआ आपने आपकी मदर, ओके वंडरफुल, दैट्स थेरेपी, यू गुड, ओके। अच्छा, सरप्राइजिंगली मैंने आज ही अपने पास ये डाउनलोड किया है, ये जार वाला, कि मैं भी आपके साथ ग्रुप में शेयर भी करती हूँ। इट सेज कि आप मतलब मंथली ना करें, वीकली भी ना करें, जब भी कोई अच्छा चीज आपके साथ पेश आए तो आप उस जार के अंदर उसको लिख के डाल दें, और फिर बाय एंड ऑफ द ईयर या नेक्स्ट ईयर आप उसको खोल के देखें कि कितनी अच्छी चीजें आपके साथ हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर हमारा माइंड हमें उसी तरफ पुश करता है कि जो चीजें अच्छी नहीं हो रही होती हमारे साथ, हम उनको ज्यादा याद रखते हैं, बट काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स ज्यादा इम्पोर्टेंट, आई थिंक। गुड, वंडरफुल वंडरफुल, आपको पता है रेजिलियंस की बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप ग्रेटिट्यूड पे करें, आप ग्रेटिट्यूड का एक जार बना दें जिसमें आप जस्ट एक चिट लिख के डाल देंगे, और एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द लाइक एंड ऑफ द ईयर तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन जो लोग कम डालते हैं वो एंड ऑफ द ईयर उनके लिए ठीक है, लेकिन जो लोग मतलब डेली बेसिस पे जिनका कोई ना कोई अच्छा कुछ लोगों ने तो डेली बेसिस पे बॉक्स बनाया हुआ तो वो पढ़ते हैं, फिर वो हम्बल होते हैं, वो उनके अंदर एक्सेप्टेंस आती है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। आप लोगों को अगर तरीम, आई एम सॉरी तरीम, आपने 5 मिनट जब हम रहते होंगे उस सेशन में आपने मुझे रिमाइंडर देना है, ठीक है? अच्छा, आप कुछ लोगों को ना अपनी बॉडी रिलैक्स करने का हर एक का रिलेटेबल है, हर एक का बॉडी रिलैक्स करने का तरीका डिफरेंट है, कोई एक्सरसाइज कर लेगा, कुछ सो के बॉडी रिलैक्स करेगा, सब सब तरीके, ठीक है, इट डिपेंड्स कि व्हाट फिट यू वेल, राइट? सो अगर आप ग्रेटिट्यूड जार बनाते हो और एक वक्त आप बैठ के पढ़ते हैं, एक अपना लगे टाइम लो जिसमें बैठ के कुछ सिर्फ आज अपने लिए एक्टिविटी करो, उससे क्या होगा, आपका माइंड, बॉडी एंड सोल, दिल तो करेगा तो डेफिनेटली कुछ करेंगे, ये क्या होता है, ये बहुत रिलैक्स होते हैं। अब देखिए, रेजिलियंस के लिए एक बात याद रखें, गम से निकलने के लिए आपके पास एनर्जी भी होनी चाहिए, नंबर 1। टेंशन परेशानी से निकलने के लिए आपके पास एनर्जी भी होनी चाहिए, फाइट बैक करने के लिए, फिजिकल एनर्जी, जो बॉडी की एनर्जी मैं आपको बात बता रही हूँ, ठीक है? उसके बाद आपके पास माइंड आपका बहुत न्यूरिश्ड एंड एनरिच्ड होना चाहिए, ठीक है?
अगर आपका दिमाग पहले से ही ड्रेन्ड होगा, खाली होगा, मसलूम परेशानियों में खपा खपा के पागलों की तरह, क्या अपने आप को परेशानी में सुधारोगी? राइट? सो मैं ये कह रही हूँ कि जब आपको अपने मतलब अपने आप को किसी भी टेंशन परेशानी से निकालना है, बिकॉज इफ यू वांट टू बिकम रेजिलिएंट पर्सन, सो आप क्या करेंगी? आप अपनी बॉडी को भी एनरिच करेंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपके अंदर फिजिकल एनर्जी होनी चाहिए, इमोशनल एनर्जी होनी चाहिए, राइट? आप इमोशंस को भी कंट्रोल में रखेंगी। आप आपको पता है कि बहुत देर बेवजह किसी चीज पे रोने का कोई फायदा नहीं है, बहुत देर बेवजह किसी चीज पे गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे याद है, मैं बहुत पुरानी यूट्यूब पे एक वीडियो शेयर भी की थी मैंने, मुझे याद है उसका कंटेंट बनाना थोड़ा शुरू किया था तो मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि मैक्सिमम गुस्सा शायद 30 सेकेंड्स, आई सॉरी आई फॉरगॉट, मैं कुछ सही तरह नहीं याद कर पा रही, लेकिन मुझे लगता इमोशंस का ये है कि 12 मिनट होते हैं, तो वो अगर 12 मिनट को कंट्रोल आगे होता है। रिएक्शन को तो उन्होंने हम सबको एक पेपर हम लोगों को रैप करके दिया। जब हमने उस पेपर को खोला तो उसके ऊपर उन्होंने एक मैच स्टिक होती है ना, माचिस की तीली, वो उन्होंने उसके ऊपर हमें पेस्ट करके दी थी। और उसके नीचे यही लिखा हुआ था कि फ्लेयर अप होने में और जलने में 1 सेकंड लगता है, तो आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो वो आई एम श्योर वो मेरे पास अभी भी, मैंने अपनी डायरी के अंदर पेस्ट करके रखी हुई है। तो वंडरफुल। रुबीना आप बिल्कुल ठीक कह रही है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, ये मुझे रिकॉल हो गया। थैंक थैंक यू। यू सो मच नासरा फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल, वो जो आपकी मेमोरी है, वेरी वेरी इंसाइटफुल मेमोरी। एंड रुबीना, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मुझे 12 मिनट्स का रूल नहीं पता था, सॉरी, आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। बट मैं एक आपको ये बता रही थी कि एंगर जो है ना, एंगर, आई रिमेम्बर कि मैंने पढ़ा था शायद 30 सेकेंड्स। कहते हैं नेचुरली जो एंगर आता है ना, नेचुरली जो किसी को गुस्सा आता है, जो गुस्से के जो बूस्ट होता है ना, वो बम्बार्डमेंट हो रही होती है उस वक्त, दैट्स द मैक्स टाइम, आई थिंक 30 सेकेंड्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 30 सेकेंड, या 30 सेकेंड ही था। 30 सेकेंड से ज्यादा गुस्सा जब हम जो आता है वो हम प्रोलॉन्ग करते हैं, वो गुस्सा खुद नहीं, मतलब वो नेचुरल नहीं होता, फिर हम उसको नकल का नाम ना दें। और ये देखिए, अब अगर 30 सेकंड आते हैं, और 30 सेकंड में अभी मैं आपको ये जो बताने जा रही हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस का, हम इंशाल्लाह फिर कोई सेशन करेंगे प्रॉपर इमोशनल इंटेलिजेंस पे, क्योंकि रेजिलियंस के पीछे इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। 30 सेकेंड्स से ऊपर जो हमारी पर्सनैलिटी हमने डेवलप की होती है, बस जिस तरह का हमने अगर किसी को गुस्सा ज्यादा दिखाना है तो बस हम लॉन्ग टाइम के लिए दिखा रहे होते हैं, तो वो हमारा उसमें रोल होता है, हमारे हाथ में होता है। वो कोई मसला ऐसा नहीं है कि हम नेचुरली, ये बात सच है कि गुस्सा आता है, दैट्स नेचुरल इमोशन, और वो होता है। लेकिन वो इतना लंबा कि 4 दिन आप नाराज हो किसी से, 10 दिन नाराज हो, अब मुझे नहीं पता यार, जब से मैंने ये चीजें सीखी है ना, मुझे नाराज होने का, मैं नाराज होती ही नहीं, मैं नाराजगी भूल गई हूँ। ये मेरे बहुत अंदर, अच्छा पहले वही बंदी थी जो छोटी छोटी चीजों पे नाराज हो जाती थी, और पूरा पूरा दिन, पूरे पूरे 2-2 दिन मेरे लिए मशहूर था, बहुत ज्यादा जिद्दी है, बात नहीं सुनती, स्टबर्न, किसी की उफ, इसके आगे किसी की नहीं चलती। वो लोगों ने मुझे बताया हुआ था फैमिली में ना, तो मैं भी कहती थी अच्छा चल ठीक है, अगर तेरे टैका बना हुआ तो तू ही बना के रख। तो मैं भी चेंज नहीं होती थी, मैं भी वैसे की वैसी, मैं भी वही पर करती थी। तो अब जब मैंने अपने ऊपर काम शुरू किया, लर्निंग शुरू की, देखा, और स्पेशली जब मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने टीचिंग वाले प्रोफेशन में मैं आई थी शुरू में, कॉर्पोरेट लाइफ में, जब बैंक्स वगैरह में मैंने काम किया, तो उनसे भी मैंने सीखा, उससे मैंने थोड़े से जो है प्रोफेशनलिज्म सीखा, ये वो। लेकिन जब मैं टीचिंग में आई ना, जब आपको लर्निंग एंड डेवलपमेंट की आप फील्ड में होते हो, तो वो आप चीजें पढ़ते हैं किसी और को सिखाने के लिए, आप जब या किसी और को सिखाते हैं तो वो रिफ्लेक्शन आते हैं लोगों के। मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में बहुत रिफ्लेक्शन देते थे, उससे मैंने बड़ा सीखा, तो फिर अपने आप को मैंने बड़ा रेक्टिफाई किया। तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इमेज एंड पर्सनैलिटी यू मेक फॉर योरसेल्फ, राइट? अपने आप को खुद क्या समझाते हो आप, ये बहुत मैटर करता है। तो अभी हम आ जाते हैं रेजिलियंस के लिए।
अगर आप अपने आप को थोड़ा कूल या रिलैक्स रखना चाहते हैं तो ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है? अभी आपको इतनी बात समझ आ गई है तो आप मे बी कॉन्शियसली किसी जगह अपने आप को कंट्रोल करेंगे, लेकिन इफ यू वांट टू ट्रांसफर इट टू योर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ये आपने देखा है कुछ लोगों से अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, तो आप क्या जवाब देंगे? अपना अपना जवाब लिखें। क्या हाल है, इसका जवाब लिखो या चैट बॉक्स में क्या 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 लिखोगी, वट एवर जो आप नॉर्मली देते हैं वही लिखना। हम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो नॉर्मली बोलते हैं ना वही लिखा करें, वही लिखें। आप जरा मुझे बताएं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छी हूँ, हाँ ठीक है, वंडरफुल। कोई आप सुनाओ, बिल्कुल ठीक है। जी मैं ठीक, आप सुने? व्हाट अबाउट यू? फाइन, ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुने, आप सुने? यस अल्हम्दुलिल्लाह। आगे और बताओ। और अब इतने ज्यादा लोग यार, तुम लोग लिखो, सारे टाइप करो। जकरिया आप भी लिख लें। क्या चल रहा है ये तेरी? गुड, हाउ आर यू? लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। अच्छा, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यू दैट्स व्हाट आई मैं आपको बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबके बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं। और नहीं ताज़ी, हाँ ये भी हम थोड़ा ज़रा एक्सप्लोर भी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर आपने कभी अपनी फैमिली में या सराउंडिंग में लोगों को देखा हो जिनसे आप पूछते हैं कि क्या हाल है, हाँ आप ऐसे रैंडम पूछ लेते हैं, आपकी कोई मर्जी नहीं होती कि ज्यादा हाल इनका जाने, बस वैसे ही ग्रीटिंग्स के तौर पर वो कहते हैं क्या हाल है। हाल क्या होगा? बहुत ही मुश्किल यार, बहुत अजीब सी हालत है, पता नहीं। कोई आपको ये कहेगा क्या हाल होने कहते जब एक हैं बंदे कहते हैं के। हाँ, कहते हाँ, हैं ना पूछे, ना पूछे। ना, ये ना, थैंक यू। ना पूछे, मैम मेरा क्या एक पूछ रहे हैं? कजन मेरा एक कजन है, उससे जब भी हाल पूछे वो कहता है कुछ नहीं, बस जलील हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फलाने ने इतना जलील किया कि ना ही पूछे, ठीक है। अच्छा, एक तो एक और मुझे याद है बड़ा, हमारे एक कुलीग बोला करते थे, पूछते थे क्या हाल है, तो वो कहते थे वही हड्डी वही खाल है। वो तो बेचारा जरा फनी सा जवाब देके तुम लोगों को खुश करता था। अ, बस क्या बताऊं। तो अब देखिए, अब आप एक चीज देखें कि सवाल इज क्वेश्चन इज द सेम, आंसर्स आर डिफरेंट। हर एक बंदे का आंसर डिफरेंट है। हर एक बंदा अपनी पर्सनैलिटी, अपने प्रोसेस और अपने फैमिली के हिसाब से, ये बात याद रखें। कुछ लोगों को बहुत आदत होती है यूजुअली अल्हम्दुलिल्लाह कहने की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। उन लोगों को ना नेचुरली उन्होंने अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों पे शुक्र प्रोसेस किया होता है और इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं, इसलिए उनके दिमाग में अभी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, कई सवाल के जवाब में जो भी रिस्पॉन्स नॉर्मल है, जब तक उसको सोच के कॉन्शियसली चेंज करते हैं वो वही रहता है। तो अभी आप यहाँ से ऑब्जर्व करें कि हर बंदा अपने दिमागी, लाइक आप उसका जो दिमाग की सिचुएशन है, जो दिमाग का फेनोमेन है, उसका जिस तरह वो चीजों को प्रोसेस करता है, इसके पीछे एक सेट पैटर्न आ या देखो। किसी आप किसी को ना ताजियत के लिए भी फोन करते हैं, उसका बहुत प्यारा भी चला जाता है, तो वो आपको जब आप उससे बोलते हैं कि क्या हाल है, तो वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। और इतने आप कभी कभी आप किसी ऐसे डिजास्टर्स चीज के लिए किसी का अगला ताजियत करने के लिए किसी भी कोई भी इंसिडेंट की वजह से आप फोन करते हैं, आप हैरान हो जाते हैं लोगों के सब्र और शुक्र का जो आलम होता है। आप खुद शर्मिंदा हो जाते हैं कि यार मैं कैसे ताजियत कर रहा हूँ, मुझे तो इससे ज्यादा दुख हो रहा था। प्रोसेस करके उनके अंदर वो पेशेंस वाला एलिमेंट उनके अंदर आ जाता है, कॉम्पोनेंट उनके अंदर कोई ऐसा लाइक इंस्टिल हो जाता है, फिर उसी से चीजें प्रोसेस करते हैं। तो ये मैं आपको बताया कि दिस इज नॉट वन डे प्रैक्टिस। नंबर वन, डू योर मेडिटेशन। दो तरह की मेडिटेशन होती हैं। एक वो मेडिटेशन है जब आप दुनिया सारी को छोड़ेंगे एक साइड पे, आप बैठ जाएंगे, ठीक है, मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाएंगे, इवन आप लेट भी सकते हैं, लेकिन आप ब्लैंक हो जाएंगे, आप अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करेंगे। ये एक बहुत अच्छी मीनिंगफुल प्रैक्टिस हो, तो आपके दिमाग में कोई थॉट ना आए। इससे क्या होता है जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं, उससे क्या होता है कि आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। तो राइट इट डाउन, इसको लाइक ये ब्लैंक अपने अपने ब्रेन को करना है। उस वक्त कोई थॉट नहीं करनी। कोई थॉट आ भी जाए तो उसको शट अप कॉल,
सेट इट अवे। इस मेडिटेशन के लिए आपको बिल्कुल कूल, काम एंड पीसफुल जगह चाहिए, ठीक है। एक मेडिटेशन वो है जो गाइडेड मेडिटेशन होती है। गाइडेड मेडिटेशन, ये मैं एक दिन किसी दिन आप लोगों का एक मेडिटेशन का सेशन आप लोगों के साथ गाइडेड मेडिटेशन जो होती है ना, गाइडेड मेडिटेशन ये होती है कि आप लेट्स सपोज कि सेकंड पे आपने कोई म्यूजिक प्ले किया हुआ है, या जैसे मैं सेशन में गाइडेड मेडिटेशन की, वो आपको कोई गाइड करता है, यू नो, टू पॉन्डर अपॉन एंड टू थिंक ऑन द सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन, और आप सिर्फ उसी सिनेरियो में चले जाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या करना है, यू नो, दैट्स कॉल्ड गाइडेड मेडिटेशन, जिसमें आपको गाइडलाइंस मिल रही होती है। तो ये दो तरह की मेडिटेशन, आप गाइडेड मेडिटेशन भी लिया करें, मेडिटेशन के सेशन वेशन भी लिया करें कभी, और फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो आप थोड़ी सी वॉक कर लें। मैं बताऊं कि मैं अभी वैसे कल ही मैं ये बात कर रही थी कि जब मैं योगा रेगुलरली किया करती थी ना, वेट भी लूज हुआ था, ऐसा नहीं है, मतलब 12 केजी को मैंने लूज किया था, लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं था कि आई वाज सो पीसफुल विद माय बॉडी एंड सोल। क्योंकि जब आपके दिमाग में ना 100 तरह के टॉक्सिक किस्म, लाइक फूड के टॉक्सिन्स नहीं निकलते आपकी बॉडी से, यू नो, स्वेट नहीं निकलता, और तो आपके ऊपर एक बर्डन होता है जो आपको आपकी बॉडी के साथ पीस नहीं बनाने देता, और फिर कहीं ना कहीं सोल भी डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो सोल और बॉडी के कनेक्शन के लिए आपको मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आपने देखा है जिन लोगों के अंदर एनर्जी नहीं होती प्रॉपर, वो गम को सही तरह डील नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते। एनर्जी क्या मतलब, आप देखें कि विटामिन के टेस्ट नहीं हुए हुए होते, आपको ये नहीं पता कि यू नो आपकी बॉडी में किस चीज की डेफिशिएंसी है, राइट। अगर आपकी बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी है, तो फिर अगर आप अपने आप को चैंपियन समझ रहे हो, तो फिर आप नहीं बन सकते, क्योंकि समटाइम्स आप रेजिस्ट कर ही नहीं सकते, यू नो, टू यू रिएक्ट। कभी कभी आपने देखा बहुत कूल काम से लोग होते हैं, बट वो सडनली कभी कभी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, यू नो, छोटी छोटी बात पे। उनकी क्या रीजन होती है, वो उनके बस में नहीं होता, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कुछ चीजें डेफिशिएंट होती है। समझ आ रही है। तो एक जो सिंपल सिंपल चीजें मैं बता रही हूँ, अभी हम अगर लेट्स सपोज के फर्दर कोई बड़ा सेशन करेंगे तो हम और भी चीजें प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन हम एक तो आप अपने मेडिकल टेस्ट जरूर कराएं, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन ये साइड पे लिखो। मेरी लर्निंग के ऊपर मैं आई विश कि मैं आपको दिखा सकूं कि मेरी लर्निंग में ना मेरी मैम, दो I want तरह to के, say something. यस रीन, सॉरी फॉर इंटरप्शन। कहते हैं बच्चे जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो जब उनमें आयरन की कमी होती है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और बहुत इमोशंस शो करते हैं। देखो पता है यही होता है, बच्चों के टेंट्रम्स की 2-3 रीजंस होती हैं। बच्चों को एक तो ये भी हो जाता है, और दूसरा बच्चों की इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बच्चों के जो पैटर्न्स है ना, उसके पीछे कुछ थोड़े से लाइक के भी और बिहेवियरल पैटर्न भी होता है, बहुत सारी चीजें कंबाइन मिलके करती हैं, और ये डेफिशिएंसीज भी डेफिनेटली इज अ पार्ट। ये देखते हैं चीजें मैं लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ। पहली लाइन होती है, पहली वाली तरफ जो है ना, ये वाली तरफ, ये जीएल होती है और ये डीएल होती है। मैं आपको बताती हूँ, तो जीएल है ये, मैंने अपना बताया हुआ है कि गोल्डन लर्निंग। मैंने अगर कोई बहुत खास चीज लर्न की है ना, तो मैं स्टेरिक के साथ क्या लिखूंगी, ठीक है। और ये पार्किंग लॉट नहीं होती है, टेक अवेज होते हैं, जो मैं जैसे अभी मैं आपको जो बता रही हूँ। तो एक्सरसाइज, मेडिटेशन, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, सोशल सर्कल बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, को समझना बहुत जरूरी है। सोशल सर्कल किस तरह स्ट्रॉन्ग रखेंगे मैं आपको बताती हूँ। मेक योर फ्रेंड्स, जो मदर्स हैं वो स्पेशली फ्रेंड्स बनाए, और वो मदर्स को फ्रेंड्स बनाए, और अपने एज के बच्चों के हिसाब से बनाओ। अपने पड़ोस में फ्रेंड्स जरूर बनाओ। ये मैं हमेशा जब वेमेन की सेशन करती हूँ, मैं उनको रेकमेंड करती हूँ कि जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या वर्क पे लोग हैं, आप जरूर उस लेवल के फ्रेंड्स बनाए। एक एक आपके प्रोफेशन से फ्रेंड्स होने चाहिए, आपकी फैमिली टाइप से फ्रेंड्स होने चाहिए। जिस तरह की फैमिली टाइप आपकी है ना, या लेट्स सपोज कि अपनी एग्जांपल अगर आपको देती हूँ, मेरी बहुत सारी मदर्स जो है मेरी दोस्त हैं, वो किस तरह, क्योंकि वो कुछ ऐसी मदर्स है जिनका मुझे पता है कि पेरेंटिंग स्टाइल, मैं उनके पेरेंटिंग स्टाइल को बहुत अच्छा समझती हूँ। आई मीन जैसे मैं अपने बच्चों की तरबियत करती हूँ, या जो मैं बेहतर समझती हूँ वो वैसे करते हैं। कुछ चीज शायद मुझसे रह जाती है, लेकिन वो लोग कर रहे होते हैं, तो मैं उन लोगों से दोस्ती करती हूँ। क्यों?
क्योंकि देखो रेजिलियंस के लिए सोशल सर्कल होना, ये जो इकोसिस्टम होता है ना, इकोसिस्टम बिल्ड करना बहुत जरूरी है, जो आपको सपोर्ट करे। आपने वो वीडियो में भी देखा था ना कि सपोर्ट आपको बहुत जरूरी होती है। जरूरी नहीं है कि आप सारे मसले को अकेले हल करेंगे, आप कर ही नहीं सकते। आपको सोशल सपोर्ट चाहिए, और सोशल सपोर्ट उस वक्त तरह तरह के लोगों की सोशल सपोर्ट लेने से बेहतर नहीं है हम अपने लिए पहले से इंतजाम करके रखें। तो बीइंग अ वुमेन, मैं तो लड़कों को भी कहूंगी, लेकिन अगर लड़कियों को तो हर सूरत अपनी सोशल सपोर्ट, उसमें बताते हैं किस किस को ऐड करना है। प्रोफेशनल्स को, जो एक्सपर्ट्स होते हैं डिफरेंट चीजों के, आप उनके साथ बैठे सीखें, ठीक है, उनके साथ दोस्ती करें, ताकि आपको सीखने में ना वो आपके बीच में कोई रुकावट हायल ना हो। पड़ोस में अच्छी पढ़ी लिखी फैमिलीज के साथ और मदर्स के साथ दोस्ती करें, और उन फैमिलीज को अपने घर बुलाएं। अगर आपकी किसी लड़की के साथ दोस्ती है ना, तो उसके हस्बैंड और बच्चों को भी बुलाओ, ताकि फैमिली के साथ जो है ना उनकी एटलीस्ट इंटरेक्शन हो जाए, वो एक दूसरे को जानते हो, और बच्चे, आपके बच्चे उनके बच्चों के साथ कंफर्टेबल हो, वो आपके बच्चों के साथ कंफर्टेबल हो, उसमें क्या होगा कि क्या आपको कोई भी मसला होगा ना, आपको रिकवर करने में जल्दी होगा। समटाइम्स आपको ऐसा मसला होता है कि आपका सिर्फ आप में भी ऑफिशियल मसला हो, आपको ये होता है कि आपको रिकवर करने के लिए सपोर्ट चाहिए, तो लेट्स सपोज कि आपके बच्चों को कुछ टाइम को हैंडल कर ले, लेट्स सपोज कि आपको चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आपको किसी दूसरे की ऐसी सपोर्ट चाहिए जो फैमिली सपोर्ट हो। समटाइम्स ये हो कि लेट्स सपोज कि आपके बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना है, तो ये आपके लिए एक ट्रॉमा बन जाता है सॉर्ट ऑफ, कि आपको बच्चों को अगर कोई नहीं पिक एंड ड्रॉप करने वाला, तो दिमाग में थॉट आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग वो हो जाती है कि बच्चों का क्या करूंगी। मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग अगर ऐसी दोस्तियां करें ना जो प्रोफेशनल भी हो, और पढ़ी लिखी मदर्स के साथ करो, मतलब प्रोफेशनल मदर्स के साथ करो। आई एम सॉरी, पढ़े लिखे तो वो आपको कंपनसेशन दे दें, कभी आप उनको कंपनसेशन दे दें। मैं आपको बताऊं, मेरे 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 फ्रेंड्स की वजह से, मेरे फैमिली की सपोर्ट लेना बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है आपको, कॉस्टली करनी पड़ती है। फ्रेंड्स आपको कुछ कहेंगे तो नहीं ना, ठीक है, वो आपको रिटर्न करेंगे, आई मीन जब उनको चाहिए होगा आप देंगे, आप टेक है ना सॉर्ट ऑफ। तो आप, और अगर आपकी फैमिली लेट्स सपोज शादी नहीं हुई, बीवी बच्चे नहीं भी नहीं है, तो फिर आप अगेन मैं कहूंगी, शायद कोई मुल्ला हजरत ये मेरा सेशन सुनेंगे तो थोड़ा फतवा भी लग जाएगा, अपनी फ्रेंड लिस्ट में लड़के भी रखें। सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोफेशनल हो, वैल्यूज एंड एथिक्स का जो प्रॉब्लम है ना असल में उसको आपने रखा है। अपनी फ्रेंड लिस्ट में लड़कियां भी रखें, और सबसे बड़ी बात है कि जिसके साथ दोस्ती करें उसकी वो कहते हैं ना कि आप देख लें कि वो किस टाइप का बंदा है, उसको शुरू में आप ऑब्जर्व कर लें, दैट्स इट। आप जज ना करें, आप असेस ना करें, लेकिन आप ऑब्जर्व कर लें, कि आप कंफर्टेबल नहीं है, नहीं, क्योंकि दोस्त के साथ आपका कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी होता है, कि अनकंफर्टेबल बंदे के साथ बंदा दोस्ती नहीं कर सकता। तो ये चीजें, अच्छा क्यों मैं आपको ये बात बताती हूँ, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर जिन बच्चियों की शादी नहीं, शायद इस सेशन में वो बच्चियां होंगी, क्योंकि जब हम लड़कों के साथ हमारी दोस्ती नहीं होती, या मतलब जान पहचान नहीं होती, या नेटवर्किंग नहीं होती, ठीक है, तो होता क्या है कि हमें दूसरा पर्सपेक्टिव ही पता नहीं होता। जब हम लड़कों के साथ रहते हैं तो हमें, मतलब वो जब हम सोशल सर्कल हो गया, या कि ऑफिस में आपने देखा होगा, ऑफिस में भी हम लड़कों से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, तो होता क्या है कि उसमें आपका रेजिलियंस इसलिए बढ़ता है कि आपको दूसरा पर्सपेक्टिव पता चल जाता है। इसमें पर्सपेक्टिव बिल्डिंग बहुत जरूरी है। और अगर मैं आपको कहूंगी कि अगर हमेशा अगर आपका बिजनेस है ना, तो बिजनेस पार्टनर यूजुअली अपोजिट जेंडर से मैं प्रेफर करती हूँ। मैं अपनी बात करूँ, उसकी रीजन पता है क्या है, कि समटाइम्स चीज को उस तरह से इस तरह देखती, चीज को जिस तरह वो नहीं देखता, तो मिक्स एंड मैच, इट्स नॉट, इट इज ऑलवेज अ परफेक्ट ब्लेंड, ठीक है, सोलो कुछ नहीं होता। तो साला राइट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, और लेट मी कम टू यू, मैं थोड़ा सा ये इसको कवर कर लूं। अभी मैं आपको बताती हूँ, आपने करना ये है कि आपने जो सोशल सर्कल अपनी बॉन्डिंग करनी है, उसमें प्रोफेशनल्स, दूसरा जेंडर, उसमें आपकी लाइक सोशल आपके ऐसे फ्रेंड्स हो जो डिफरेंट इवेंट्स पे जाते हो, जो कभी आपको किसी अच्छे इवेंट पे साथ ले जाएं, चीजों को देखें। एंड आई ऑलवेज टेल यू कि देखिए, कभी भी दोस्ती में, चाहे वो लड़की है, मर्द औरत, कोई जेंडर है, लेट्स सपोज, उसमें एथिक्स का बहुत ख्याल रखें, वैल्यूज का बहुत ख्याल रखें। आप एक दूसरे को जज ना करें, अंडरस्टैंड करें, एम्पथाइज करें,
उससे भी आपकी भी रेजिलियंस बढ़ती है, और रेजिलियंस को बांटो भी, लोगों को भी रेजिलियंस बेहतर करने का मौका दो, ठीक है। सो स्पोर्ट। अब एक चीज आप देखो, अब मैं आपको जो एक एग्जांपल दी थी कि इस्लाम का जवाब कोई किस तरह देता है, क्या हाल है का जवाब किस तरह देता है। हर एक बंदा अपने पर्सपेक्टिव से आंसर देता है आपको, ठीक है। अब अपने पर्सपेक्टिव कैसे बदलना है, रेजिलियंस के लिए पर्सपेक्टिव, लेट्स बोल। आई रिमेम्बर, मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर रही जो मेरे सामने हुई थी। जब अर्थ आया ना, तो अर्थ में आई रिमेम्बर कि कुछ लोगों ने कहा कि बस अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह की मर्जी है। कुछ लोगों ने, कुछ लोग ना बहुत ज्यादा, आप कह दें कि अनग्रेटफुल हो गए थे, अल्लाह नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे। वो कोई बहुत लाइक, एक आंटी को मैंने देखा तो उन्होंने कहा कि मैंने रमजान था मुझे याद है, कहती है मैंने तो रोजे नहीं रखे। इस तरह से कह रही थी कि मैं नहीं रोजे रखूंगी, अल्लाह ने हमारे साथ क्या किया है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आप देखें, वही अर्थ को उस कंधे की भी आया है ना, जो कहता अल्लाह ने हमें बहुत डील दी, अब आजमाइश आई है तो अब आजमाइश अच्छी तरह गुजर। तो पर्सपेक्टिव आपका क्या है? अच्छा, पर्सपेक्टिव को ना अगेन दूसरे लेंस से, जैसे क्या नजर आ रहा है, कोई माइक ऑन करके बता दे क्या नजर आ रहा है। हाँ ठीक सूरज है, सा लाइट। घर है नदी के बीच लाइट में। हाउस से लाइट बिल्डिंग। हाउस। हाँ ठीक है, वो कवर बिल्डिंग है। और बताओ। मैम लाइट हाउस लग रहा है मुझे। अच्छा चलो, पेंटिंग है, गुड, ओके, ठीक है। व्यू ऑफ सी तो साइड। अब ये देखें, ये सी व्यू। साइड बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपको सी साइड व्यू बिल्कुल ठीक है। वैसे आपकी ऑब्जर्वेशन आप लोगों की बड़ी अच्छी है, आई अप्रिशिएट। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, देखो आप, ये आपको तो दूर से नजर आ रहा है सबको, ठीक है, और आपने जो देखा आपने उसके हिसाब से अपनी परसेप्शन बनाई है, दैट्स राइट। लेकिन अगर आपने इसको एक्चुअल में जानना है, तो पर्सपेक्टिव को लेट्स लेट्स टर्न इट द अदर वेज, राइट। अगर आपने पर्सपेक्टिव बदलना है तो क्या करना होगा? आस्क क्वेश्चंस। आप You have लेट्स to open this. लेट एक्सप्लोर इट। ये थोड़ा सा ना ब्रॉडर पिक्चर में देखेंगे, और ये आप में से किसी ने भी, मेरा ख्याल है, अभी तक नहीं लिखा कि ये डायरी है, ठीक है। सो मैं वो दूसरा पर्सपेक्टिव दे रही हूँ जो आपने लिखा, अभी आपने लिख लिया, किसने इससे अभी लिखा है, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या है, अभी इस पर्सपेक्टिव को भी देखो, इस डायरी पे जब तक आप मुझसे डिस्कशन नहीं करेंगे ना, आपने जो देखा आप उसी पे कायम रहेंगे, आपको वही लगा है, क्योंकि आपके दिमाग ने, आपकी आंख ने जो इमेज कैप्चर किया, आपके दिमाग को वो जो मैसेज किया, आपको वही लगा है। अब पर्सपेक्टिव चेंज करें तो आप मुझसे पूछेंगे कि अच्छा ये वैसे है क्या, हमें बताएं। तो मैं आपको, जैसे आपने बहुत सारी चीजें ठीक लिखी हैं, कि ये क्या है, मैं आपको ये बताऊंगी कि दिस इज अ डायरी, और ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। मेरे किसी तरह ट्रेनी ने मुझे, जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी उससे पहले, इसने छोटी सी डायरी गिफ्ट की थी, क्योंकि उसको पता था मैं पॉकेट में डायरी रखती हूँ हमेशा। तो ये डायरी उसने मुझे गिफ्ट की थी, तो मैं आपको फिर इस डायरी की थोड़ी सी ना हिस्ट्री पर्सपेक्टिव में आपके ऐड कर दूंगी, फिर इस पिक्चर पे आ जाएंगे कि आई लव दिस डायरी बिकॉज ये, इस पे इसमें जो सीनरी बड़ी अच्छी है, और ये इस तरह मुझे बड़ा, एक बड़ा वो आपको स्टैटिकली बड़ा अच्छा वो देती है लोग। तो अब क्या होगा, जब आप मुझसे पूछेंगे ना, तो आप डिफरेंट सोच रहे होंगे इसके बारे में, राइट। ऑलवेज चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट योर चैलेंज। अच्छा देखो, पर्सपेक्टिव एक दिन में नहीं आप चेंज करते, वो भी, इसको भी आपको हैबिचुअल करना पड़ता है अपने आप को पर्सपेक्टिव चेंज करने में। सो ऑलवेज चेंज योर पर्सपेक्टिव बाय नोइंग मोर अबाउट दैट। या अगर आपका पर्सपेक्टिव, मैं आपको बताती हूँ, अब आज अपने ऊपर एक चेक लगाएं कि आप यूजुअली चीजों को किस तरह लेते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरी, बिल्कुल एक ब्रॉडर जर्नल लाइफ किस्म की टर्म है ना। आप चीजों को लेट्स सपोज कि आप कंस्ट्रक्टिवली लेते हैं, आई मीन आप देखते हैं कि यार अब इसमें से क्या कर सकते हैं हम, क्या कहते हैं, अच्छा छोड़ो, मिट्टी पा, जो हो गया हो गया। अभी एक चीज मैं देख रही थी, जैसे हमारे सामने बच्चे कुछ करते हैं ना, आप में से बहुत सारे के बच्चे भी हुए, हमारे सामने बच्चे कुछ करते हैं तो कुछ लोग फैमिली में कहते हैं कि नहीं बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, नहीं नहीं बच्चे तो इस तरह करते हैं। अब वो क्या होता है, वो बच्चे ये पर्सपेक्टिव सुनते हैं ना कि बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, बस फिर वो पक्का करते हैं। समझ आ रही है बात? तो अभी उनको ये भी तो पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि हाँ ये बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, या बेटे ये इसको ऐसे कर लो ना तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसको नई वाली सेंटेंस ही ना बोलो, ये बोलो कि ऐसे कर लो। तो ये डिपेंड करता है कि आपके सामने कोई भी एक्टिविटी होती है, आप उसको
लाइक प्रोग्रेसिव वे में लेते हैं या नहीं लेते, कि इससे कोई कंस्ट्रक्शन, इससे कोई अच्छी चीज। आपके सामने बच्चा कुछ भी एक्टिविटी कर रहा होता है ना, उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, उसने कहीं ना कहीं से वो चीज अब्जॉर्ब की हुई होती है, क्योंकि उसको तो रिफ्लेक्शन का और तो कोई तरीका नहीं आता ना, वो तो फिर करके दिखाता है। आप बच्चे के सामने कभी कोई ऐसी बात कर ली, कभी कोई ऐसी गाली दे दें जो शायद आप यूजुअली गाली ना देती हो, लेकिन कभी किसी बहुत गुस्से की स्टेज में आपने कह दिया उल्लू का पट्टा, बच्चा आपकी उल्लू का पट्टा स्टोर हो गया। अब ये उल्लू का पट्टा तब निकलेगा जब वो तोतली तोतली जुबान में उल्लू को पट्टा मेहमान के सामने कहेगा। मेहमान को तो शायद समझ ना आए, लेकिन आपको समझ आ गया। अब आप क्या कहेंगे, पता नहीं किधर से सीखा है इसने, पता नहीं। मेहमान को पहले तो अब ये एनालाइज करते हैं मेहमान को समझ में आई है कि नहीं आई है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये ये ऐसे है कि हम अपना पर्सपेक्टिव एक दिन में नहीं, आई मीन एक दिन में नहीं चेंज कर सकते हैं। वो किसी भी सिचुएशन के बारे में, अक्सर हमारे सामने ना जो आपके कलीग्स होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के लाइक ट्रेनिंग्स में भी मैंने इस चीज को देखा है, स्टडी किया है कि लोगों की हैबिट्स ऑफिस में कैसे बदलती है। नासा को पता भी होगा, या आप लोगों में से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, डेफिनेटली वर्किंग मदर्स भी हैं, वैसे भी आप प्रोफेशनल से काफी सारे लोग। आपकी टीम में कोई ऐसा मेंबर है जो शुरू में सबको लग रहा था कि बड़ा टॉक्सिक है, जैसे ही आपने टीम ज्वाइन की ना, आपने उसको ऐसा ऐसा जब आपके साथ वो काम करना शुरू हुआ तो सारे आराम होने शुरू, यार इसकी तेरे साथ बहुत बनती है, उसकी बनती नहीं होती। आप उसको अप्रिशिएट करते हैं और वो वही काम करना शुरू कर देता है जो पर्सपेक्टिव आप उसका अपने साथ, मतलब आपके कॉन्टेक्स्ट में जिसको जो उसका पर्सपेक्टिव आपके लिए बिल्ड होता है, फिर वो वैसे ही करना शुरू होता है। उसको लगता है कि ये बंदा मुझे जानता है, मैं अच्छे काम करता हूँ और इसको पता है, राइट। फिर वो क्या करता है, वो उस तरह चीज को प्रोसेस करता है। तो आपके लिए उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, दूसरों के लिए डिफरेंट है। सो इट डिपेंड्स कि आप पर्सपेक्टिव बिल्ड कैसे करते हैं और लोगों को पर्सपेक्टिव बिल्ड करने में कैसे हेल्प करते हैं। रेजिलियंस के लिए आपकी सराउंडिंग्स को भी अगर आप उसको कुछ दे सकें, उस सराउंडिंग्स को भी रेजिलियंट बना सके तो बहुत बेहतर होता है। बिकॉज टुगेदर जब फाइट करते हैं तो डेफिनेटली आपको होता है सिनर्जी होती है। हाँ, कुछ मैं आपको टूल्स बताऊंगी, जैसे माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन के लिए कोई आ, आप वैसे सर्च करें, अगर आप लोग चैट जीपीटी से सर्च करेंगे ना डिजिटल टूल्स, तो उसमें मैंने एक टूल देखा था, मैंने खुद अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं उसको, वो डिजिटल टूल है उसको चेक करूंगी। पीस मेकर के नाम से था, या ह्यूमन पीस या कुछ लाइक पीस के नाम से कुछ है, आप वैसे सर्च कर लें मेडिटेशन पे, या आप उस पे लाइक रेजिलियंस पे टूल सर्च करें, ठीक है। वो आपको देगा, चैट जीपीटी पे सर्च करें, फिर वहां से आप निकाल के उधर दूसरी तरफ वो कर सकते हैं। कोई एक ऐसे टूल से जो जो मैं देखे थे, सेल्फ केयर को बहुत ज्यादा, क्योंकि जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी ना तो आप चीजों को जल्दी जो है ना उस पर रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है। एक और आप लिखिएगा, जब आप ये इस पे लिखेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियरल टूल्स होते हैं, वो भी डिजिटल टूल्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए आजकल हम सारा कुछ चाहते हैं कि बस इधर वो क्लिक पे ऐसे ऐसे करें और बस चीजें हो। कुछ चीजें ये कि जैसे अगर अब मैं आपको टाइम दूं, क्योंकि सेशन का टाइम जा रहा है खत्म होने को, अब मैं आपको टाइम दूं तो आप 3 सेंटेंसेस अपने बारे में रैंडमली अब आप क्या लिखेंगे, जल्दी लिखें, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग यू वांट, 3 सेंटेंसेस जल्दी से लिखो। ये चैट बॉक्स में लिख रही अपने पेपर पे लिखो, कोई भी 3 सेंटेंसेस, वट एवर। तुम कोई सिचुएशन लिखना चाहते हो, तुम अपने बारे में, आपके दिल में कोई चीज काफी अच्छे से अटकी हुई है, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग एज डिजिटल ग्रेटफुलनेस डायरी, वंडरफुल वंडरफुल। ये तेरीम, इसका आप लोगों के पास अगर कोई ऐसा टूल है तो आप उसका लिंक शेयर कर लें ताकि बाकी लोग भी उसको यूज कर सकें। And be ready to change in positive. इंशाल्लाह। वंडरफुल साल है, बड़ी बड़ी जबरदस्त बातें लिखी हैं भाई। डिड यू राइट? 3 सेंटेंसेस लिखे अपने बारे में। अच्छा, ये प्रैक्टिस है जो आप, ये प्रैक्टिस मैंने भी खुद पहले ज्यादा नहीं की थी, ये कुछ टाइम ही चीजें मैंने सीखी है तो मैं आपको भी सिखा रही हूँ।
आप किसी टाइम ना जस्ट आप शाम को एक डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएं, सुबह नाश्ते के वक्त डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे हैं, टेक जस्ट 5 मिनट्स, इवन 3 मिनट्स, उस दिन अपने बारे में कोई 3-4 सेंटेंसेस लिख दो। कोई मतलब इसमें कोई रैंडम सेंटेंस जो दिमाग में आता है, फ्री जर्नलिंग इसको बोलते हैं, राइट। जब आप फ्री जर्नलिंग करते हैं ना और आप एक डायरी रखने वाले हैं, उसमें कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट यू डू, आपने अपने बारे में क्या सोचा था, आपकी परसेप्शन क्या है, कैसे। तो इसको कभी फिर कभी जिस वक्त आपको टाइम मिले तो कभी एक दफा पिछले सालों को एक दफा देख लिया करें, आपको खुद फील होगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। अगर साला ये अगर आपने जो लिखा है ना, तेरी वंडरफुल, अगर आप ये जो आपने लिखा है ना, इसको अगर आप एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद एक दफा नजर डालेंगे तो अगेन आई एम श्योर आपका पैशन रिवाइव हो जाएगा। आपको आपका ब्रेन, अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अब असल में जो आपका सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में फर्क है, और 10% आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है और 90% आपका सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। और मैं आपको अगर ये बात बताऊं, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा ये जानना, जोसेफ मर्फी की आप लोगों में सबकॉन्शियस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अगर आपने बुक पढ़ी हो, ये नहीं भी पढ़ी तो कभी उसको पढ़े। एडवर्ड डिबोनो ने भी ब्रेन पे बड़ा काम किया है, माइंड पे भी किया है, उसको भी एडवर्ड डिबोनो को भी आप लोग जरूर सुने, उसकी टेड टॉक सुने, उसकी बुक्स पढ़े, इससे आप लोगों को खुद स्ट्रेंथ मिलेगी। इनफैक्ट वो कहते हैं कि आपका जो ब्रेन है 2 दफा आपस में बात करता है, सॉरी माइंड आपको 2 दफा बात करता है। मैं आपको बताती हूँ, जब आप रात को सोते हैं ना, तब कॉन्शियस, जो पूरा दिन हमने कॉन्शियसली काम किए होते हैं, कॉन्शियस माइंड टॉक्स टू योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट, एंड इन द मॉर्निंग योर सबकॉन्शियस माइंड टॉक्स टू कॉन्शियस माइंड। बात समझ आइए। होता क्या है कि आपने कभी कभी देखो कि आप, ये अक्सर मैं लोगों को ये बात बताती हूँ, बहुत सादा आम बात है लेकिन उनको समझ आनी बहुत जरूरी है। कभी कभी देखो, कभी कभी हम बड़े पीसफुली सोते हैं, डिपेंड्स ऑन सोने से पहले हमने क्या प्रैक्टिस की है, हमने हमारे कॉन्शियस माइंड ने सब कॉन्शियस को क्या मैसेज ट्रांसफर किया है, and then again in the morning, next morning, what strong message your subconscious mind provides back to the conscious mind। अच्छा, उस सबकॉन्शियस माइंड ने रात को प्रोसेस करता है वो जो आपको ख्वाब आ रहे होते हैं या आपको उधर से आ रहे होते हैं, इनफैक्ट तो वो क्या करता है, वो रिटर्न करता है, क्या करता है, कॉन्शियस को रिटर्न करता है, उसमें से कुछ चीजें जो रह जाती है वो कॉन्शियस को रिटर्न करता है। कभी कभी आपने देखा हो तो सुबह उठते हैं तो बड़ा अच्छा ख्वाब होता है, तो बड़ा प्लेजेंट मूड से उठते हैं, बॉडी भी रिलैक्स होती है। कभी कभी बड़ा डिजास्टर्स किस्म का ख्वाब, वो पानी और हम तैर रहे हैं और जहाज और जंप और ये और वो, तो वो आपको बड़ा कभी कभी बड़ी जंगी जहाज भी आपको नजर आ रहे होते, कुछ इस तरह की चीजें। तो हम बड़ा उठते हैं तो बॉडी बड़ी ऐसे स्टिफ होती है और बड़ा अजीब सा अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे होते। वो होता ही है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने इतना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन रात को दिया होता है ख्वाब में कि वो सुबह भी कॉन्शियस माइंड को भी वही चीज ट्रांसफर हो जाती है। तो नेक्स्ट डे कॉन्शियस माइंड में वो चीजें रहती हैं, वो पूरा दिन फिर हमारा कभी कभी मूड, अगर हम अपने आप को मूड को कंट्रोल करना नहीं चाहते तो पूरा दिन वो इमोशंस के साथ चलता है। तो आपको ये बात समझना होगी कि हम कॉन्शियसली अपने माइंड को क्या मैसेज देते हैं और वो मॉर्निंग में क्या मैसेज हमें रिटर्न करता है। हेल्दी एक्टिविटीज क्या है, सोने से पहले आप कोई बुक पढ़ लें, जैसे मेरे पास ये बुक है, मैं इस पे कोई ट्रेनिंग, इस पे मेरी एक ट्रेनिंग भी है, मैं उस पर भी कुछ थोड़ा काम कर रही हूँ। ये बुक मेरे पास है, सेल्फ एस्टीम पे, कब से मैंने शुरू की है, इसको मैंने रखा हुआ, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती हूँ जिस वक्त मेरे पास की, यहाँ पे आपको बाहर अगर मेडिकल के लिए जाना है या कोई टाइम लग रहा होता है ना, तो मैं वहां बैठ के पढ़ रही होती हूँ, बस में पढ़ रही होती हूँ, ट्रेवल टाइम ज्यादा होता है तब पढ़ रही होती हूँ, जहाज में पढ़ रही होती हूँ ऐसी। तो आप अपने पास एक छोटी सी बुक लेके पर्स में जरूर रखें, उससे क्या होगा, आपकी जो रीडिंग हैबिट होती है उसका आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है। और आपको चीज, मेरी वैसे रीडिंग की हैबिट है कि मैं अगर पढ़ती हूँ ना तो मैं उसको रिफ्लेक्शन करती हूँ, एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करती हूँ, रिकॉल करती हूँ। मेरी बुक्स में अक्सर बेशतर बड़ा लिखा होता है। जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी तो सबसे ज्यादा पेनफुल चीज मेरे लिए ये थी कि मैं अपनी बुक्स छोड़ के आ रही थी, और उससे भी ज्यादा ये बात होती है कि मैं लोगों को बुक्स करती रहती हूँ कभी कभी, नॉट ऑलवेज, बट लेकिन जब मैं अपनी बुक किसी को देती हूँ ना, मुझे लग रहा था मैं अपने आप का एक हिस्सा किसी को दे रही हूँ, क्योंकि मैंने उस बुक में बड़ी बातें लिखी होती है। आई डू कन्वर्सेशन विद द बुक्स, सेल्फ कन्वर्सेशन इज वेरी गुड, बट बुक के साथ कन्वर्सेशन करोगी तो सेल्फ कन्वर्सेशन हेल्दी हो जाएगी, राइट। तो बुक के साथ बातचीत किया करो, उसके साथ अच्छा, उसके लोग कहते हैं बुक पे लिखना नहीं चाहिए, मेरे बुक पे साइड पे मैं पूरा लिख लेती हूँ, उसे दिमाग में जो चल रहा था
समटाइम मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं मानता और वो मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि ये बात तो मैंने इसकी ठीक की थी, इसको बड़ा समझाया था, ये सुना नहीं। अगेन साल के बाद मुझे वो माइंड में जब बुक रीड कर रही होती तो मुझे उससे समझ आता, अच्छा इस वजह से उसने वो बात मेरी नहीं मानी थी। फिर मैं लिख लेती हूँ, तो वो इट डिपेंड्स कि आप कैसे रिकॉल करते हैं। एक और लास्ट चीज जो सेशन में जो मैं समझती हूँ कि आपके लिए बहुत जरूरी है, इस शॉर्ट सेशन में भी मेरा ख्याल है कि 15 पे इंशाल्लाह हम ऑफ कर देंगे इसको, ठीक है। लास्ट की जो सेशन है मैं वो आपको शेयर करती हूँ। वो जो हार्मोन्स है ना, रेजिलियंस के लिए, टू रिकवर बैक क्विकली, आप अपने हार्मोन्स को, मैं हमेशा औरतों को स्पेशली, जैसे मेरे कभी लाइक वुमेन्स डे पे सेशन होते हैं या इवन भी अभी लास्ट टाइम मेरा फ्रांस में पेरिस में एक सेशन था, मैंने उसमें भी लोगों को ये बात बताई थी, वो पूरी दुनिया से इन्फ्लुएंसर्स आई थी, उसमें मैंने लड़कियों को ये बात बताई थी कि अपने हार्मोन्स को बैलेंस करो। अगर जो आपके आते हैं ना, जो आपको समझ आती है हार्मोन के बारे में, स्टडी भी करो, अभी मैं भी कुछ बता देती हूँ, आप उनको जरूर बैलेंस करें, क्योंकि उनको बैलेंस करने से आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आती है, आपका स्टेमिना बिल्ड होता है। एक मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करती हूँ रेंडमली, ताकि आप उसको देख लें। और ये कुछ स्लाइड्स मैंने अपनी ये जो उसकी ना रेजिलियंस की प्रेजेंटेशन में से मैंने कहा आपको दिखाती हूँ, ताकि आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको शेयर कर देती हूँ स्लाइड, ठीक है। देखिए आपको नजर आ रहा है, इज द स्लाइड विजिबल टू यू पीपल? है, नजर आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ओके, आई एम सॉरी यार, ये तो बहुत आगे चला गया है। मैं इस स्लाइड पे जाके फुल करती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नजर आए। आए होए होए, आई एम सॉरी। चलो इसी पे फिर चले जाते हैं, इसी पे इत्तेफाक कर लेते हैं कि छोटे में ही देख लेते हैं। ये ले, ठीक है। अब देखिए, आपने देखा होगा डोपामिन, आपने देखा होगा कुछ लोग ये रील्स वगैरह जो आजकल चल रही हैं, रील्स होती है शॉर्ट, आपने देखा आपके घर में जैसे मतलब कोई अक्सर देख रहा होता है, कोई बहन भाई है, कोई बच्चा है, कजन है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो वो क्या करते हैं, वो डोपामिन जो है ना, डोपामिन, वो क्या करते हैं, शॉर्ट प्लेयर, कम टाइम के लिए प्लेयर, ये है कि वो देखते हैं ना, वो शॉर्ट सी रील देखते हैं, खुश होते हैं, हंसते आगे चले जाते हैं। ये क्या है, वो डोपामिन रिलीज होता है, और वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। डोपामिन रिलीज करने के लिए कुछ लोग इवन एडिक्टेड हो जाते हैं। आपने देखा है कि वीडियोस, जो शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, वो देख रहे होते हैं, देख रहे कुछ भी नहीं कर रहे, स्क्रॉल अप एंड डाउन, स्क्रॉल अप एंड डाउन, और वही शॉर्ट्स देख रहे होते हैं। उसका यही है, sorry, उसका ये सबसे बड़ी रीजन ये है कि आपको आदत हो जाती है शॉर्ट टर्म डोपामिन रिलीज करने की। तो अब जो डोपामिन है ना, इसको शॉर्ट टर्म भी हम रिलीज कर सकते हैं, और इसको देखो, ये एक हेल्दी चीज से रिलीज नहीं हो रहा, ऑल्दो रिलीज हो रहा है, ये हेल्दी चीज से नहीं हो रहा, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है ना, वो हमारे लिए द लव हार्मोन इज सो इम्पोर्टेंट। आपने देखा होगा कभी आप किसी के साथ मिलते हैं तो उसको हक करते हैं तो आपको बड़ी वार्म फील होती है। स्पेशली आप अपने पेट्स को देख लें या अपने बच्चों को देख लें, जब आप कहीं से काम से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, तो अपने बच्चों को हक करते हैं तो कितना प्यार फील होता है, when somebody join hands। और या कभी कभी आप अपनी दोस्त के साथ, बड़ी प्यारी दोस्त के साथ हैंड शेक करके मिलते हैं, तो आप जब हैंड शेक करते हैं तो कितनी वार्म आपको मिल रही होती है, और स्पेशली जब हक करके मिलते हैं, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो ऑक्सीटोसिन आपका रिलीज होता है। और ये जो हग है, ये एटलीस्ट 20 सेकेंड्स आपकी हग होनी चाहिए। आई मीन जोर से लोगों को जो अच्छे लगते हैं उसे जप्फी मार के, जोर से जप्फी मार के मिला करो। उससे क्या होता है आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो प्लेजेंट फील होता है, अब जो आपका जो रेजिलियंस में इसके अलावा जो हार्मोन बहुत ज्यादा काम करता है वो सेरोटोनिन है, ठीक है। सेरोटोनिन क्या करता है, ये मूड स्टेबलाइजर होता है आपका। इसमें आप मेडिटेशन से भी आप इसको रिलीज कर सकते हैं, विटामिन डी भी लें, सन एक्सपोजर से भी होता है, अपने 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 आप को बैलेंस कर, आप बैठे प्रॉपरली, सन लें, एक्सरसाइज करें, नेचर में। अगर आपने कभी देखो, कभी ग्रीनरी, या कभी आप लोग शहरों के जो धुआंधार स्मोकी माहौल से निकले, तब किसी जैसे गांव में चले जाए, मरी तो बहुत क्राउडी हो गया उसमें नहीं, थोड़ा किसी आगे गांव में चले जाए, या जैसे आई नो के नासरा बिलोंग करती हैं, एक जो पीर साहब के गांव है, तो वो भी बड़ी प्यारी जगह है। तो इस तरह की चीजों कभी टाइम निकालें, गो सिट देयर, जस्ट एंजॉय द नेचर ऑफ ब्यूटी।
देयर इज अ ब्यूटी ऑफ नेचर, आई एम सॉरी, उससे आपकी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन रिलीज होगा, मेडिटेशन से होता है, ठीक है। एंडोर्फिन जो है ये रेजिलियंस के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसमें इसकी डेफिनेटली इसके लिए ऑयल्स वगैरह भी काम करते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक्सरसाइजिंग बहुत जरूरी है। और जैसे आपने लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, डार्क चॉकलेट और छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करें, विन, एक आप फील करें कि छोटा सा काम किया, अकॉम्प्लिश किया, उसको विन करो, लाइक विन फील करो उसका, ठीक है। और जो लोग हंसते नहीं है ना, कम हंसते हैं, कोई ऐसी चीजें जो आपको लगे कि हंसाती है, तो कभी कभी ना एक, आप लोग पता नहीं जानते ही नहीं जानते, फरत आपा, फरत बशीर के नाम से हमारी तो बड़ी अच्छी दोस्त है, उन्होंने एक दफा एक ग्रुप बनाया, लॉल, लॉल माय फ्रेंड, LOL माय फ्रेंड्स। तो हम हंस रहे थे फरत आबा की बात पे कि आपने ये ग्रुप के, और वो ग्रुप मुझे ना विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे पता चला कि वो टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए वो ग्रुप कितना जरूरी है। आपको पता है कभी कभी मैं बड़ी सुअर स्ट्रेस में होती थी, कभी फेसबुक खोल दूं ना, वो लॉल में ग्रुप का कोई एक जोक सामने आ जाए, ठीक है, उसमें सारे लोगों का, उसका मोटिव ये था ग्रुप का कि सारे लोग उसमें जोक्स पोस्ट करेंगे, प्रोफेशनल जो है ना, प्रोफेशनल सारे काफी ज्यादा प्रोफेशनल है उसमें। तो हम फिर एक हम मीटअप भी कभी कभी करते थे जब मैं पाकिस्तान में थी। तो हम क्या करते थे, उसमें हंसने हंसाने वाली बातें करते थे। अच्छा, वो मैं पहले तो सबको लगा ये क्या है। तो वो फरीद आपा ने कहा कि इस प्रोफेशनल लाइफ में हमारे पास हंसने के लिए टाइम ही नहीं बच पाता, तो वो कभी कोई वहां से जोक पढ़ के हंस लेंगे, यू नो तो कोई फनी कंटेंट भी जरूर दिखा करें उसमें, कि आपकी लॉफिंग से, ये लॉफिंग भी एक थेरेपी है, जो एक बहुत एक्सेसिव उसमें जो हर वक्त खिच 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 नहीं करना, लेकिन आई मीन एक सर्टेन टाइम के बाद आपको जरूर एंजॉय करना चाहिए। और आपको कोई ऐसा मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए जहां आपको लगे कि एंजॉयमेंट करनी चाहिए। दूसरी चीज मैं औरतों को ये बोलूंगी कि आप जाएं बाहर, घूमे फिरे, कभी मी टाइम लें अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। जैसे अभी मैं वैसे सोच रही थी, मैं कुछ चीजों में मसरूफ हूँ, मैं इसके बाद सोच रही थी कि आई टेक अ ब्रेक फॉर 2 days, और मैं अपनी दोस्त दूसरे सिटी में, यहाँ कनाडा में मेरी एक दोस्त रहती है, कॉलेज फ्रेंड रहती है, तो मैं उसको कह रही थी कि मैं अपने बच्चों को दादी के पास छोड़ूंगी और मैं तेरे पास आ जाऊंगी 2 दिन के लिए। क्योंकि यहाँ तो आपके पेरेंट्स भी नहीं होते, फ्रेंड्स भी नहीं होते, मैं तो पेरेंट्स से भी ज्यादा फ्रेंड्स के पास में जाया करती थी, पेरेंट्स के पास जाना कम ही होता था, तो फ्रेंड्स के पास में जाया करती थी, या हम फ्रेंड्स मिलकर लाइक कहीं बाहर चले जाते थे। और आप किसी, अगर अगर बेहतर ही हो कि अभी अगर आपको कभी मौका मिले किसी ऐसी जगह जो आप फ्रेंड्स के साथ प्लान करें विदाउट फैमिली, आई एम सॉरी, फैमिली को छोड़ के, ठीक है, फैमिली तो हर जगह साथ है, बच्चों का कोई प्रॉपर बंदोबस्त करें, या आपको हस्बैंड से परमिशन मिलती है, या पता नहीं जो भी आपके प्लान करें, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ के लाइक, मतलब आप आउट स्टेशन जाके कभी सिर्फ जस्ट फ्रेंड्स एंजॉय करने जाए, उससे जब आप देखेंगे ना, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट होता है, जब आप वापस आते हैं तो बड़े एनर्जाइज होते हैं। तो इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज सेशन। एक पोइट्री किसी ने सुनानी थी, Hello. 40 एनिमल्स, यस साले, आई नो यू लव एनिमल्स। जी, कौन था पोइट्री कोई सुना रहा था? मैं ये ओके तहरीम, आप कैमरा ऑन करेंगी, शर्त ही है, हम आपको देखना चाहते हैं ना पोइट्री सुनाते हुए, जैसे भी है यार, कोई बात नहीं, बाल नहीं बने कोई बात नहीं, मुंह नहीं धोया कोई बात नहीं, देखो मैं भी जरा सुबह सुबह ही आई हुई हूँ, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। आप लोग मैं आपको एक अपनी अपनी टॉक, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको एक यूट्यूब से अपनी एक टॉक होगी मेरी, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, कुछ थोड़ी बहुत चीजें उसका उसमें से मिल जाएंगी, मैं आपको वो देती हूँ, और मैं आपको लिंक पोस्ट करती हूँ इन द सेशन। एक मिनट, वो आपने जरूर जो है वो देखनी है, थोड़ा सा उसमें से आपको मिलेगा वो, लेकिन एटलीस्ट वो ये है कि वो हमारी जस्ट बेसिक इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए वो मैंने कुछ जस्ट फ्यू स्टेप्स है, लेकिन वेरी बेसिक, बट मैंने वो किए हुए। आप पोइट्री सुना रही है भाई हमें, यस या आपने माइक ऑन करना भूल गए? यस हाँ, गुड गुड तेरी, गुड टू सी यू, या लवली, बताओ, चलो सुनाओ। एक बेसिकली मिनट, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, हमें एक मिनट जरा आपकी पोइट्री की रिकॉर्डिंग भी करते हैं, एक मिनट सब्र कर जाए। रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है या नहीं चल रही है? ओ आई एम सॉरी, Yes, रिकॉर्डिंग ही नहीं चल रही, रिकॉर्डिंग yes, yes, it is सिस्टम, working. Recording हो रही है. ठीक है। बेसिकली ये जो पोइट्री मैंने लिखी थी, ये मैंने अल्लामा इकबाल से
इंस्पायर्ड होके लिखी थी, और ये जो पोएट्री है बेसिकली ये मैंने अल्लाह ताला के लिए लिखी थी। माशाल्लाह, आपकी अपनी है? जी मेरी अपनी है। वंडरफुल, ठीक है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। मैं शिकंजे गम की तलाश में, ये जहां भी छानूं तो कम लगे। है मुराद मेरी कमाल की, जब कबूल हो तो वो गम लगे। मुझे पेशगी में मिला हुस्न, वो हुस्न भी ऐसा कि कम लगे। जब हसीन गुजरे नजर से मेरी, तो ये मैं कदे उन्हीं को नम लगे। ना तलाश कर कभी वो सफर, जिस सफर में तेरा दिल लगे। कभी पाँव से जिसे जानता तू, अगर जानकर क्यों अनजान लगे। वाह 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 वाह, वंडरफुल। एक दफा फिर पढ़ो, थोड़ा सा आराम से पढ़ना, आहिस्ता आहिस्ता। मैं शिकंजे गम की तलाश में, ये जहां भी छानूं तो कम लगे। है मुराद मेरी कमाल की, जब कबूल हो तो वो गम लगे। मुझे पेशगी में मिला हुस्न, वो हुस्न भी ऐसा कि कम लगे। वाह वाह जब वाह, हसीन गुजरे नजर से मेरी, तो ये मैं कदे उन्हीं को नम लगे। ना तलाश कर कभी वो सफर, जिस सफर में तेरा दिल लगे। कभी पाँव से जिसे जानता तू, मगर जानकर क्यों अनजान लगे। वाह 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 That's वाह, it. माशाल्लाह माशाल्लाह, wonderful wonderful. Zareen, do you want to share something? Thank you so much, Zareen, for sharing your poetry with you. जबरदस्त जबरदस्त। और इसको मुझे प्लीज आप भेजिए भी, मुझे मेरे लिंक्डइन पे आपने मुझे ये भेजिए, ठीक मैम है? मैं भी कुछ सुनाना चाहती हूँ, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो है ना, एक खता है, इससे मैंने अपनी पूरी जिंदगी संवारी है। तो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो बहुत आसान सी है। वो है कि बिल्कुल शेयर उसे काटा गया, गूंदा गया, पीसा गया, फिर भी सबह गंदुम से लेना दुनिया फिर भी भूल जाती है। किसी भूखे के काम आने से पहले गौर से देखो, दहकती आग पे रोटी खुशी से फूल जाती है। वाह वाह, क्या कमाल बात की आपने। यानी अगर हमारी जात किसी के काम आती है ना, तो उसका मतलब है कि हम मोतबर हो जाते हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। थैंक यू सो मच जरीन, वंडरफुल वंडरफुल। मुझे ये नासरा भी अगर कुछ सुना ले, और फिर हम इसको, मैं आखिर में आपको एक सुनाऊंगी और फिर हम वाइंड अप करेंगे। चले नासरा, कम ऑन। नासरा भी बड़ी जो है ना शायराना, हाँ मीटिंग। अगर कैमरा ऑन करें तो अच्छा ही होगा यार नासरा। मेरी बहुत बुरी हालत है। कोई बात नहीं भाई, हम आपकी बुरी हालत को भी अच्छी हालत मैम समझेंगे। मैं 1 घंटे से स्कार्फ बांध के बैठी हुई थी और आप नहीं सुन रही थी। मैंने जैसे स्कार्फ खोला तो आप सुनने लगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी अभी देखे, आप सारे लोग अपनी सारी पोजीशन ठीक कर ले, क्योंकि हम एक ग्रुप फोटो बनाएंगे। तो अपने स्कार्फ का बांध ले, मेरी तरह जो भी स्कार्फ करता है, जो नहीं करता बाल संवार ले। ओके, यस नासरा, कम ऑन। अच्छा, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट फहमीदा रियाज की एक नज्म है, आजाद नज्म है। आप सब लोगों ने बहुत दफा सुनी होगी, बट स्टिल मैं इस सेशन बहुत इंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच हिना, बहुत मजा आया। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राहज़न इतने हैं। कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो। जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा। वाह 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 वाह, जबरदस्त। आपने दोनों शायरियों को सम अप करके एंड में जो है ना वो लेसन आपने दे दिए है। थैंक यू सो ये मच। लम्हा तुमसे हाँ, है, अपनी करनी कर और जो गुजरो, जो कर होगा दिया कर देखा जाएगा। फिर देखा जाएगा। छोड़ो गम परेशानियों को, एंजॉय करो। अब इस वक्त तो एंजॉय करो यार, करंट या में जीना चाहिए। अगली बार मैम मैं भी सुना दूं थोड़ा सा? थैंक यू सो मच। बाकी बिल्कुल, क्यों नहीं, तो सुनाओ यार। ओके ओके फाइन। अभी देखो, अच्छा मैं बताती हूँ, 5 मिनट आपके पास है। आई गिव यू 5 मिनट। मुझे पता है आप लोग आप में से कोई और भी कुछ सुनाना चाहता है तो लाइक 5 मिनट, एक एक मिनट हम सबको दे सकते हैं, 5 लोगों को दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। थैंक यू मैम, जी थैंक यू लेना। मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये मेरी अपनी है, पता नहीं आप लोगों को पसंद आती है कि नहीं, क्योंकि उस कैलिबर की नहीं है शायद, लेकिन फिर भी मैं शेयर करना चाहूंगी। यार ये नहीं, मतलब ये शुरू में तारीफ लगाना जरूरी